Hi everyone. So today let's talk about markets and the view forward. We'll take a couple of questions, maybe towards the end, or you can request, and probably will maybe add in between two. Okay. So let's talk about first what the markets are doing and where are we heading going forward. So first of all, the view I've shared in uh, previous week was of bullish, and I've repeated this couple of times that the markets may turn bullish, and I'm at least looking at a bullish view going forward. And markets did pretty well. I was bullish from 36,800 something on bank nifty and 16,000 something on nifty, and it has played well for me. Right now, if you look at the markets, like the going forward, markets are at a very, very, very tricky zone, and one needs to understand this. I am bullish, but this does not mean that I'm looking for a new all-time high kind of thing. Right now, everyone should be, understanding this fact that until otherwise proven, this is not, a start of an another kind of a bull rally or a another leg of a up move. This is more like a pullback, at least till now, and treat it that way. There is a very good damage on broader charts and broader sectors and stocks, broader market. If you look at any high growth stock or any stocks that went up like 2 3x or that were popular on social media, all these stocks are down 50% at the very least. So there is a good damage there. People are in losses, and this is a painful time for them. I'm not expecting, or one shouldn't be expecting fireworks at this moment, because charts doesn't turn overnight. That stocks are down 50% right now, and it will turn and go back up 50% again. This doesn't happen. It takes time to breathe, time to consolidate, time to relax, kind of thing, and then it goes back up again or down again wherever it wants to. But consolidation is very important in the markets, and there will be consolidation. So one needs to understand this very carefully, that going forward, don't expect, like, we may go up again for a couple of days, but this doesn't mean that we have again entered into a bull run and just start to take a lot of leverage, or just go overboard on stocks. So don't do that, and be very careful. Maybe use this rally to exit some of your positions where you are stuck or not very confident, and revisit it later on. So when once you get an sustained uptrend, maybe few months down the line, then maybe get back in with your full power. But right now, just focus on exiting, and maybe not so much on entering new stocks. Or if you do, treat it as a trading bet or a tactical bet. Don't treat it as a very bullish kind of a bet. So that is there. US markets are looking good. Crypto markets are in an extremely difficult stage right now. Nothing is working there. No coin, no token. Nothing is moving up. Bitcoin is at 29,000, which is a very important zone. If this breaks from here, then it's the end of crypto for the time being. And if it takes a support, then we might see a good move. But again, when the US markets went up, crypto markets didn't move. Okay, so this is kind of a means this is not normal, and this hasn't happened till now. The crypto markets and Nasdaq move hand in hand. Both are correlated, and I've seen this after a long time that Nasdaq went up, but your Bitcoin and other crypto markets didn't perform. So that is something of a hiccup or a problem. So keep a track on Bitcoin. It is very important that you, when one looks at Bitcoin, so it is a forward indication of what's happening or what can happen. On stocks and the sectors, maybe I'll talk later on. Let's Okay, I see Amit sir here, and let's take couple of questions. Let's take couple of views, and then maybe talk more on stocks and sectors later on. So uh, let's see. Okay, I got a question. I've added uh,
Avinash, Ashish क्या है? Ashish, sorry. Ashish, you can ask your question. Uh, hi everyone. Yep. Actually, my question is regarding basically for NBFCs. So, what can we expect in NBFCs in next few months, or you can say in 2022, how they will work, what we can expect from market. So, I want your So, view. in which NBFC are you in? I'm asking for Poonawala Finance. Oh, okay. So, Poonawala के लिए entire NBFC का view is not very important because Poonawala, the way it moved up post COVID is something different. Okay, it may not be because the entire NBFC moved up, but maybe due to the fact that Poonawala took over the existing company that was Magna Fincorp, I guess. So they took over Magna, bought the entire company and renamed it to Poonawala Fincorp, and then the journey started for Poonawala Fincorp. So there is a different story altogether for Poonawala. Okay. Uh, Uh, People are very bullish on Poonawala. So it is really or it is a hype for the Poonawala? देखो एक honest बात बोलूं, मतलब most people won't like it, but this is the hard truth. Okay, the moment a stock gets hyped on social media, या you read or you get to know about a stock from social media, please understand कि वो stock का दिन पूरा हो गया. Because किसी भी स्टॉक में स्टॉक विल ओनली मूव अप व्हेन पीपल बाय, एंड व्हेन वंस इट कम्स ऑन सोशल मीडिया, प्लीज एज्यूम दैट एवरीवन एल्स हैज बॉट. अगर सोशल मीडिया पे आ गया तो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, हर कोई देख रहा है यहाँ पे वो स्टॉक, एंड हर कोई खरीद रहा है वो स्टॉक. सो अब कोई बचेगा नहीं खरीदने के लिए. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स. आईएक्स ले लो, ये क्या नाम है, सोना कॉमस्टर ले लो. मींस आई कीप टॉकिंग अबाउट बोथ these stocks because I have seen people were extremely bullish on them, and it has fallen a good, मतलब it has fallen a lot. Everyone entered at the top. आप जाके देख लो, ट्वीट्स में सर्च कर लेना जाके कि आईएक्स, सोना, ये सब के बारे में ट्वीट्स कब आया था, किस टाइम पे आया था, लोग कब से हाइप कर रहे हैं. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इवन सम ऑफ द पॉपुलर केमिकल नेम्स एंड ऑल, जब केमिकल सेक्टर ट्विटर पे पॉपुलर हुआ था, फ्रॉम दैट पॉइंट केमिकल हैज ओनली वेंट डाउन. सो वंस अ कंपनी कम्स इनटू सोशल मीडिया, प्लीज अंडरस्टैंड हर कोई खरीद चुका है, हर कोई को पता है स्टोरी, देयर इज नथिंग न्यू दैट्स गोइंग ऑन. ओके, एंड एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन द स्टॉक बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट इट. अगर आप कोई ट्विटर थ्रेड पे पढ़ रहे हो कि ये पूरा स्टोरी है, तो यार एवरीवन नोज अबाउट इट एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन अबाउट द स्टोरी. आप ऐसा कुछ देखो ना जो किसी और को नहीं पता है. मीन्स यू ओनली Correct, मेक मनी व्हेन अदर्स बाई एंड बिड द स्टॉक अप. आप ही खरीदोगे, आप मतलब आखिरी में, तो फिर और कौन खरीद रहा है आपके बाद. correct, You need correct. someone else to push the price up. Okay. Thank you very much. Yeah, okay. Hmm. We added two people, Vishal and Rahul. Yeah, Vishal, you can ask a question. Seems there's some issue on Twitter's end. People are not getting connected. Okay, yeah, Sudhir, maybe you can ask. Sir, my doubt is, अभी a lot of people are saying present Nifty index or broader market की picture correct नहीं दे रही है indication. The Nifty reading is not correct as per the broader market. Broader market ज़्यादा correct हो गई और Nifty is being managed to project different levels.
ठीक है, तो आप उनसे एक बार जाके पूछिए कि अगर निफ्टी 10% गिरेगा तो स्मॉल कैप को भी 10 ही परसेंट गिरना चाहिए क्या? Okay, this is the nature of, the larger companies fall less or gain less, the smaller companies gain more or gain less, मतलब fall less. This is called beta. Okay, कितना index से उसका beta है. So the more the beta is, the more a stock performs with respect to Nifty. So Nifty will, if Nifty goes up by 10%, a stock will go up by 20, 30, 40%. सो ऑब्वियसली जब निफ्टी गिरेगा 10-15% तो स्टॉक्स जो है वो गिरेंगे 20%, 30%, 40%. सर सो अभी प्रेजेंट आप क्या बोलते हैं सर, लाइक निफ्टी वाला स्टॉक्स में रहना सेफ है या ब्रॉडर मार्केट में रहना सेफ है? हाँ, सो ये अच्छा क्वेश्चन है. ओके, सो इसका आंसर क्या है कि लुक, इफ यू वांट टू बी इन्वेस्टेड, सो उसका तरीका क्या है. व्हाट आई डिड इज, जब मेरे को लगा कि मार्केट इज फॉलिंग, सो आई एग्जिटेड अ लॉट ऑफ, मतलब मोस्ट ऑफ माय स्मॉल कैप्स एंड got into cash and few into large cap. So मैंने एयरटेल टाइप के स्टॉक्स लिया, मैंने कुछ पीएसयू बैंक्स लिया. So all these stocks are large cap. So अब let's say small cap गिरेगा 30%, but निफ्टी गिरेगा, ये large caps गिरेगा 10%. So when a large cap fall 10%, then you can again you have outperformed your smaller cap अगर आपका वो benchmark है तो. So rotate your money like this. You, when the market goes up, be into mid caps, small caps. When the market falls, move into large caps kind of thing. ओके सर, थैंक यू. Yeah. Yeah, Dr. Jaydeep, I've added you as a speaker. सर जय हिंद. Yeah, Jai Hind sir. सर मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अभी कुछ वो स्कैम का वगैरह न्यूज आ रहा है, तो उसमें कंटिन्यू करना चाहिए या शिफ्ट करना चाहिए? इसके लिए आप एकदम एकदम आपको आपको पता है स्कैम क्या है, मतलब क्या पूरा स्टोरी है? कुछ फ्रंट रनिंग का वगैरह बोला है कि उन्होंने जो मैनेजर से उन्होंने पहले पोजीशन लिया था जो स्टॉक को पहले बाय करने वाले थे ऐसे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो पूरा सीन ये है कि एक सेकंड, मैं आपको एक बार म्यूट कर रहा हूँ, आपके एंड से नॉइज आ रहा है. ओके, या, सो द एंटायर सीनियर्स की लेट से म्यूचुअल फंड के मतलब फंड मैनेजर्स ने डिसाइड किया कि आज लेट से कोई कंपनी निफ्टी खरीदना है लेट से. सो उन्होंने डीलर को बोला फोन करके कि डीलर निफ्टी खरीद लो. सो डीलर अपना मतलब म्यूचुअल फंड के जगह मतलब के लिए बाई करने से पहले ही बॉट इन हिज पर्सनल अकाउंट, देन बॉट फॉर द म्यूचुअल फंड. प्राइस वेंट अप बिकॉज ऑफ the buying from the mutual fund, and then the dealer sold and he made a profit. Now this is called front running because आप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे फ्रंट रन कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड के आगे भाग रहे हो. सो विच इज इलीगल बेसिकली. अब ये चीज से आपको क्या नुकसान हो रहा है एज अ पॉलिसी होल्डर. सो अगर आप देखो तो आपको जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, बिकॉज जो फ्रंट रनिंग होना था वो हो चुका है. आपका प्राइस पहले से हाई है या बहुत ही नॉमिनल होगा, बट एनीवेज यू हैव लॉस्ट मनी देयर. अब एक्सिट करके कोई फायदा नहीं है. ओके, बिकॉज द फ्रंट रनिंग इज ऑलरेडी डन. और हो सकता है सेबी कुछ करेक्टिव मींस एक्शन ले, या एक्सिस म्यूचुअल फंड कुछ करेक्टिव एक्शंस ले. हो सकता है कुछ रिम्बर्समेंट भी करे, हो सकता है कुछ नैव बढ़ा दे, एडजस्ट कर दे, मे बी, मींस इट डिपेंड्स ऑन देम. बट अगेन जो होना था हो गया. फॉर एज एन इन्वेस्टर यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड अगेन इट्स अ स्मॉल इशू एज एन इन्वेस्टर. एज अ प्रोफेशनल और इफ यू लुक अबाउट द इंडस्ट्री, इट्स अ प्रॉब्लम की इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए. बट इफ यू लुक एज फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है. इट्स एन पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ यार, मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. जो हो गया सो हो गया वाला है. मींस इफ यू एग्जिट इट डजंट मेक सेंस फॉर यू, राइट? टैक्स इवेंट भी हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो टैक्स भी देना पड़ेगा. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मींस डूइंग एनीथिंग. ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशन. या, Himanshu, Ranvijay, so would you guys like to add something here? On the topic view forward on the markets, that is right. Yes, yes, right, yeah. व्यू फॉरवर्ड अच्छा ही लग रहा है अभी तो. फॉर अ शॉर्ट टर्म मार्केट अच्छा लग रहा है, पर रेंज है
हम शिफ्ट हो रहे हैं छोटी रेंज से बड़ी रेंज में, अपर साइड में, और जो लोअर रेंज है वो इंटेक्ट है। जो 15,700 के आसपास जो तीन एक बॉटम बन गए शायद मेरे हिसाब से। तो मार्केट के हिसाब से ये अच्छा है कि लोअर रेंज इंटैक्ट है और अपर रेंज एक्सपांड कर रही है। तो व्यू फॉरवर्ड मेरा तो यही है कि वी आर इन गुड स्टेट, अच्छा लेवल देख सकते हैं। पर मैं 17,100 से ज़्यादा का लेवल अभी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। 17,100 इस एक्सपायरी में आ सकता है, एंड सेम वही है, रेंज बड़ी हो गई है। तो उससे भी अगर कम कुछ टारगेट देखना है अपने को, तो अभी 16,000 का स्टॉप लॉस लेके अपन लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट में, और 17,100 का व्यू रख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक दो स्टॉक्स की बात कर दूं तो मुझे एक्सिस बैंक अच्छा लगता है, 710-15 तक जाना चाहिए, और आईटीसी भी अच्छा लगता है। आई थिंक इस एक्सपायरी से पहले 280 285 के लेवल्स आने चाहिए। दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू। Cool, yaar. Views taken, noted. Ranvijay, would you like to add something? नहीं भाई, मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ, आप कंटिन्यू करिए ना, कुछ होगा तो Okay. मैं बताता हूँ। Sure. Okay. So एक broad view ले लेते, मतलब मैं share कर देता हूँ on each and every sector जो CNX sectors है उन पे। Starting with mid cap undercut किया है previous lows को and it is going up. Same with small cap, but small caps are not very bullish. Like मैं small cap index का बात कर रहा हूँ, it is not looking very bullish जितना होना चाहिए mid cap या निफ्टी का जितना अच्छा bullish strength था उतना small caps पे नहीं है. On mid small cap it is okay. Small cap 200 का भी same है, okay. Autos look very good. Autos का it's has given a very bullish closing and the structure is very good for autos. Commodities is a big sell. बेच लो जितना जल्दी बेच सकते हो, जितना जल्दी एग्जिट कर सकते हो. Commodities are a mess, complete एकदम बहुत बहुत गंदा चार्ट है commodities का. Energies are kind of confused, range के बीच में stuck है, so let's see where it goes in the coming week. Finance is looking good. FMCG is looking good. Infra is also बेच दो, जल्दी से जल्दी बेच दो, it is looking very bad. IT is in a again IT I'll recommend to stay away. IT में अगर कोई घुसना चाह रहा है ना, better to stay away right now and don't हड़बड़ी में exit करने का काम करो. Just stay uh, kind of on sidelines and wait and watch for IT. On media again wait and watch, be on sidelines. Metals बेच दो, pharma बेच दो, PSU banks is good. रियलिटी बेच दो एंड प्राइवेट बैंक्स ले लो. सो दिस इज ब्रॉडली ऑन निफ्टी सेक्टर्स. ओके, आई गॉट कवर ऑफ मोर क्वेश्चंस. किसी को किया हिमांशु? आशु भाई, इसमें मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। अभी बताइए. आईटी, हाँ, आईटी देखना चाहिए। आईटी मुझे लग रहा है कितने दिन के लिए आप बोल हिस्टोरिकली रहे हो? भी नहीं, आईटी के बारे में सिर्फ मेरा एक कॉन्ट्रा व्यू था। नहीं, आईटी कितने दिन अभी के लिए, मतलब आईटी किस हिसाब से बोल रहे हो? एक शॉर्ट टर्म 2-4 दिन का स्विंग का बात कर रहे हो या एक 10 दिन का पोजिशनल नहीं, बात? अगर मैंने जो पहले लेवल्स की बात की 17,100 इस एक्सपायरी में अगर जाना है तो उसमें लीडर मुझे लगता है आईटी ही होना चाहिए। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और आईटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो सबसे ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर होता है वही सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करता है हिस्टोरिकली, जितना मैंने देखा है। आई मे बी आप रॉन्ग, बट नहीं, दैट इज माय व्यू। आप हिमांशु भाई, आप है ना, बात कर रहे हो एक लॉन्ग टर्म, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि नो नो नो, 10 मैं साल में जो नहीं बीटन नहीं डाउन होगा आशु भाई, वो मैं अगले 10 साल मैंने चलेगा. एक महीने का व्यू दिया। मैं उस एक महीने के व्यू को ही पकड़ के चल रहा हूँ, और मैं वही बता रहा हूँ। मैं इस अगर 17,100 निफ्टी जाता है तो उसमें आईटी का मेजर रोल होगा निफ्टी को पुश फॉरवर्ड करने में। ये मेरा व्यू है मेरे को इसी लग रहा है एक्सपायरी के फाइनेंस लिए। पुश करना चाहिए. आईटी डजंट लुक गुड, वेरी गुड टू मी.
it has to consolidate a lot. IT का बहुत बुरा चार्ट है, unless it consolidates it cannot go up. मतलब कोई चांस नहीं है यहाँ से वो एक बार में खींचे ऊपर. So let's see what happens next week यार. I won't be touching IT, ये मेरा रहेगा. That is fine, but I will look opportunities to buy in IT. जो ज़्यादा बीटन अप हो गए हैं उसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा अगर अपनी पोजीशन बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टिंग के अच्छा लिए रिटर्न बनाना मिलना है, चाहिए. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप ट्रेडिंग के लिए तो एकदम मेरे को नहीं लग रहा है बनाना चाहिए अगेन. मींस जो चल रहे हैं उनको चलाओ ना यार. आप बॉट मतलब फॉलिंग नाइफ को क्यों कैच कर रहे हो? ऐसा सीन है इधर. नहीं अब एक आशु बार भाई, चार्ट देखना है, खाली वो सीएनएक्स आईटी मार्केट का देखना है. बेसिक स्ट्रक्चर ही कॉन्ट्रा व्यू पे ही डिपेंड होता है. मतलब आप एक सेक्टर में बुलिश है, मैं एक सेक्टर में बेरिश हूँ, तो मार्केट ऐसा ही राइट. चलता है. नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली. ऐसे नहीं चलता मार्केट, ऐसे नहीं चलता मार्केट. अरे इक्विटी क्या नाम है यार, इक्विटी टू बीट भाई. सही गलत जो भी होंगे अलग बात है, बट तरीका होता है ना बोलने का. आप पहले खुद को Just इंट्रोड्यूस करो, आप बताओ कि listen आप one क्या thing. बोल रहे हो. Just listen one thing. Market is a zero sum अरे game. नहीं सुनूंगा, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा प्लीज यार. आप कोई भी हो, डजंट मैटर. फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप एकदम ह्यूमनली बताओ कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, ऐसे नहीं होता है. सही गलत होता है बाद में होगा, बट नो वन नोज कल क्या होने वाला है. बट एटलीस्ट बी ह्यूमन, बी पोलाइट, बी तरीके से बात करो. अब आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करो. आप कौन हो? इक्विटी टू बीट. हेलो यस. सर, जैसे मैं अभी मार्केट में लास्ट 6 to 8 मंथ से ही हूँ. अभी मैं न्यू हूँ मतलब. तो पहले मैं नॉर्मल करता था इक्विटी, तो मेरा सही जा रहा था. फिर मुझे थोड़ा लालच आ गया तो मैं ऑप्शन बाइंग में आ गया. तो सर ऑप्शन बाइंग में तो मुझे मतलब ये समझ आया नहीं, तो लॉसेस होने लग गया. फिर मैं फ्यूचर्स में आ गया. ओके. तो फ्यूचर में मैंने सर पहले 1-2 बार तो मेरा सही जा रहा था. फिर मैंने नेकेड फ्यूचर लेता था. मार्केट जब अभी टॉप पे गई थी ना 18,000 पे, नीचे से 15,000 से 5,700 से जो 18 गई थी अभी, तो मैंने उस टाइम हाई पे ले लिए थे फ्यूचर. वो भी नेकेड ले लिए थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी का. ओके. तो बस मेरा एसएल था कि मैं 16,500 पे निकाल दूंगा जब नीचे आएगी. पर मैंने थोड़ा लेट हो गया एसएल लेने में. तो जब 16,000 आई, सॉरी 17,000 आई, 17,400 एसएल था मेरा. तो मैं लेट हो गया, तो मैंने 17,000 पे निकाल लिया उसको, फ्यूचर को. तो मेरा ये था कि जैसे फ्यूचर हम लेते हैं उसके हिसाब से हमें हेज करना चाहिए. तो क्या करना चाहिए? कॉल सेल करनी चाहिए वगैरह, या उसके अपोजिट पुट या कॉल लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? आप Should I लेते हो speak or not? फ्यूचर? हाँ, एक सेकंड मैं इनको आंसर देता हूँ, फिर आप बोलिएगा. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, या आपको ऐसे लेना नहीं चाहिए फ्यूचर. अगर आप ले रहे हो तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो कहीं पे. पिछले 2 दिन के लो पे लगा दो. लाइक कुछ नहीं समझ आते, एटलीस्ट पिछले दिन के लो पे या 2 दिन के लो पे या 4 दिन के लो पे कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस लगाओगे ना, टू गेट आउट फ्रॉम योर पोजीशन. हाँ, वही गलती होगी. मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया ना, लेट लिया बहुत. हाँ, बस आप उसको सुधार लोगे तो ठीक है. अब हेज यहाँ पे कुछ नहीं होता है. आप हेज करोगे तो 9 बार 10 में नुकसान करोगे. एक बार जब सही भी होगे ना, तो भी आप हेज को होल्ड नहीं कर पाओगे. आप एग्जिट कर दोगे हेज को, या हो सकता है हेज ही ना लो. सो क्या फायदा ऐसे प्रोबेबिलिटीज पे काम करके. मतलब ये है कि मैं नेकेड लेने में सही रहता है, इसको हेज करना ही चाहिए हमेशा मतलब. नहीं, हेज नहीं करना चाहिए हमेशा, वही मैं बोल रहा हूँ. आपके पास उतने पैसे होना चाहिए. मतलब आपके पास 5 लाख हो तो आप 1 लॉट फ्यूचर्स का बाई करो, सेल करो. आप उसके नीचे बाई सेल मत करो अगर 5 लाख रुपए नहीं है रखने के लिए सामने. तो फिर ना करें 5 लाख से कम में. हाँ, पर इतने कैपिटल नहीं है तो फ्यूचर्स ना करें. हाँ, एग्जैक्टली मत करिए ना. वही बात है कि जरूरी नहीं फ्यूचर्स करना. आप कैश में ट्रेड करो ना, कैश में ज्यादा पैसा बनेगा. मतलब ऑनेस्टली आप फ्यूचर से ज्यादा पैसा कैश में बना सकते हो. आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा आपको. कैश में ये सर पॉइंट है, वही. पैसा बनाने पे फोकस करते हैं. ओके. हाँ, वो मेरा बस वही होगा. मैं थोड़ा क्विक मनी के चक्कर में ना सीधा उसमें आ गया, डेरिवेटिव में आ गया, जल्दी ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर. हाँ. उस तरह के 2-3 स्टॉक के बारे में पूछना था, अगर आप थोड़ा बता सके. आप डीएम करना यार स्टॉक्स पे. फिर अभी है ना, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं ना. आपका पर्सनल स्टॉक्स का कोई वो नहीं होगा, एडवांटेज नहीं होगा बाकी को. राइट. आगे मार्केट के बारे में तो आप डिस्कस होएगा ही अभी यहाँ स्पेस में, वो तो पता चल ही जाएगा आगे भी फॉरवर्ड क्या है. हाँ, मैंने शेयर भी कर दिया. आप अगर लेट ज्वाइन किए होंगे तो आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, विल डिस्कस मोर ऑन दैट.
Should I speak now? Yes, Okay. yes, yeah, equity. Oh, yeah. हाँ, I am Divakar Garg from Jaipur. Okay, hi Diwakar, बोलिए. हाँ, simple is that market is a zero sum. जी. सब जगह बायर होता है, सेलर होता है. सिंपल एज दैट. अगर मार्केट में बायर नहीं होता और सेलर नहीं होता तो एज जब मैं स्टार्टिंग में मार्केट में स्टार्ट किया था तो मेरा ड्रीम था कि मार्केट में अपर सर्किट लगे. सब मेरा सब मजाक बनाते थे कि बाजार में अपर सर्किट कभी लग ही नहीं सकता. क्यों? सप्लाई इमर्ज एवरी टाइम. बट 2009 में हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 अपर सर्किट देखे. सो सिंपल इज दैट. और ये मार्केट में अभी आपको ना स्टॉक स्पेसिफिकली जाने की जरूरत है. मार्केट है ना, वैसा नहीं है कि आप मार्केट पे बुलिश हो जाओ और अब ये हीरो मोटो खरीद लो, टाटा मोटर खरीद लो, रिलायंस खरीद लो या आप एल&टी खरीद लो. इट्स नॉट लाइक दैट. मार्केट इज ना जीरो सम गेम. हम लोग बुल मार्केट के करेक्शन मोड में है. रिमेंबर वन थिंग, हम लोग वी आर इन द फेस ऑफ बियर मार्केट, बुल मार्केट करेक्शन मोड में. तो और आप मैं कुछ स्टिल डेटा साथ में शेयर करेंगे प्लीज कि आप कुछ देख बिल्कुल रहे हो कुछ. बिल्कुल. जी. रिमेंबर वन थिंग, मार्च से हम लोगों ने कितनी बार लो टेस्ट किया है? आप बताइए ना, मतलब. 3 टाइम ओके. लो टेस्ट किया है. ओके. ओके. बट रिलायंस, एल&टी, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक नेवर ब्रेक द लो ऑफ लास्ट 3 टाइम लो. सो इफ लार्ज कैप मार्केट है ना, हम लोग समझो कि मिड कैप चल रहा है, स्मॉल कैप चल रहा है, लार्ज कैप चल रहा है. हम लोग उनसे बायस हो जाते हैं कि भाई आज लार्ज कैप चला, कल मिड कैप चला, कभी लार्ज कैप चला, ओ सॉरी स्मॉल कैप चला. हम लोग उससे बायस हो जाते हैं. सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई मार्केट में अगर लार्ज कैप अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, तो इट मींस मार्केट में सेलिंग अब्जॉर्व हो रही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. रिमेंबर वन दिस, 16,475 के ऊपर का अगर क्लोज आ गया विदाउट ब्रेकिंग 15,800, 671, मतलब मैं वो लाइटली मैं लोअर लेवल की बात करता हूँ, लेकिन स्टिल आई बिलीव मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ है. मतलब मेरे अरे जो यार, आप माफ करिएगा सर, ऐसे नहीं चलेगा. थैंक यू. है तो कैसे चलेगा? हेलो. या गणेश जी, प्रतीक, या राहुल, यू कैन आस्क फर्स्ट. यू आर वेटिंग लाइन. या सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या उसका क्या सेटिंग वगैरह चेंज करना पड़ता है, जैसे RSI हो गया या फिर सुपर ट्रेंड या वीवैप, अगर टाइम फ्रेम रिपीट चेंज करिए, कर रहे हैं 5 मिनट या 15 मिनट? एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा. सर कोई जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, तो उसका क्या सेटिंग चेंज करना पड़ता है, जैसे फैक्टर हो गया उसका और ऐसा वैसा कुछ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लाइक क्या क्या चेंज करने का बात कर रहे हो आप? जैसे सुपर ट्रेंड हम लोग यूज करते हैं ना, 10 और 3 का, 10 और 3 का, ठीक है. तो क्या अगर हम टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं तो क्या उसको चेंज करना पड़ता है, 10 को 5 करना डिपेंड कर रहा पड़ेगा है. या फिर नहीं, आप डिपेंड कर रहा है आप क्यों यूज कर रहे हो और क्या करने के लिए यूज कर रहे हो. लाइक सुपर ट्रेंड अगर आप समझ रहे हो तो उसमें 3 क्या है, 10 क्या, अगर आपको पता है आप कितना लुक बैक पीरियड ले रहे हो, कितने दिन का ATR उसमें ले रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. अब आप इंट्राडे में कितना ले रहे हो, पोजिशनल में कितना ले रहे हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. इसका कोई जेनरिक आंसर नहीं है चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एंड एक ये भी पॉइंट है कि ये सब इंडिकेटर्स यूज नहीं करने का, डैट सारे जेनरिक, आप 3 यूज करो, 10 यूज करो, क्या यूज कर रहे हो, सब जेनरिक, मतलब आई मीन ये है आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो
मतलब आप क्या यूज करोगे? आपके पास कोई वो नहीं है, मतलब एक आंसर नहीं है दैट 3 इज द राइट और 10 इज द राइट। आप हर पे अपना उसको चार्ट को मॉडिफाई करके दिखा दोगे कि ओके देखो मेरा तो आज चल गया 3 पे, कल 4 पे चल गया, अगले दिन 10 पे चलेगा। बट विल यू मेक मनी डूइंग ऑल दैट? आप एक बार सोचना ये बात। अच्छा, मतलब उसको हम फिर बाय डिफॉल्ट जो है उसी को उतने पे ही छोड़ के रखें ना, या आप यूज ही मत करो। और अगर यूज ना करे तो फिर सिर्फ प्राइस फॉलो करें। क्यों आप नहीं कर सकते हो? हाँ, करते नहीं है, बस थोड़ा बहुत लगाते हैं ये सुपर ट्रेंड और व्यू ऐप, और मूविंग एवरेज करते हैं 5 का और 20 का, क्रॉसओवर पे ट्रेड लेते हैं। हाँ तो आप ले सकते हैं, आपका मर्जी है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है। या गणेश प्रतीक। ठीक है। या यस रणविजय। हाँ, मैं हाय। ये राहुल जी ने बोला, मैं थोड़ा बहुत सुन रहा था बीच में। मैं सिर्फ ये कहूंगा सर, हाँ मार्केट हाँ में ना सब कुछ चलता है, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को भी पकड़ लेंगे ना, कोई भी एक स्मॉल स्टडी भी, तो वो भी चलता है। उसका सबका टाइम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट आप एक चीज पे स्टिक रहना सीखिए, कोई भी हो, उसका फर्क पड़ता है। जब हम हॉप करते जाते हैं सिस्टम से, तो हमारे साथ ज्यादा इश्यूज होते हैं नॉर्मली। आशु, आप कंटिन्यू करिए। यस यस थैंक्स थैंक्स भाई। सो यहाँ पे गणेश है, प्रतीक है, सो इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन। भाई भाई मेरा बाई मिस्टेकली टैप हो गया, बाई मिस्टेक ओके टैप हुआ। ओके ठीक है फाइन। ओके गणेश या जतिन, एनीवन? No sure if I'm audible. If I'm audible, guys, can you just put a kind of emoji or something? Yes. Not sure. हेलो सर। Okay perfect, yeah. यस, तो इथेनॉल स्टोरी में के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे रेणु इस का पे रिजल्ट तो अच्छे है, बट दे सर हैव मैं सुना नहीं, एक बार रिपीट करना प्लीज। आप स्टार्टिंग में क्या बोले? रेणुका और ये इथेनॉल स्टोरी के बारे में रे, आपका क्या कहना है? ओके रेणुका एंड गुड इथेनॉल कंपनी, स्टोरी। बेस्ट कंपनी इन द इथेनॉल स्टोरी। हाँ गॉट इट। सो रेणुका शुगर मेरे को लग रहा है आप बेच दो अभी, ठीक है। इट हैज काइंड ऑफ मेड काइंड ऑफ डबल टॉप। देखिए आप टेक्स्ट बुक पे मत जाइए, इट इज अ डबल टॉप मेरे पैरामीटर्स पे, एंड it has given a breakout and now it has come back in its range, which is not good. One should kind of exit here, and 50 के ऊपर आप री-एंटर कर लो अगर चलता है तो। पॉइंट 1 पॉइंट 2 फंडामेंटली अगर आप शुगर देखो ना, तो शुगर में इस सीजन में ओवर प्रोडक्शन होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। इस पे कंपनीज का रिप्लाई था दैट वी विल डाइवर्ट आवर एक्सेस प्रोडक्शन डायरेक्टली इनटू एथनॉल प्रोडक्शन, एंड वो हम ओएमसीज को बेचेंगे। दिस वाज द रिप्लाई फ्रॉम देम, एंड इट मार्केट टुक इट पॉजिटिवली कि ठीक है, एक्सेस अगर शुगर का मतलब शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, देन उसे शुगर नहीं बना के सीधा एथनॉल बनाएंगे एंड एथनॉल ओएमसीज को बेचेंगे। नाउ यहाँ पे अब दो नया इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट इज trying or maybe thinking to ban sugar exports. अगर sugar exports को government ban करती है, then the price of sugar is gonna not crash but at least soften a bit. Point 1 point 2, right now OMCs जो खरीदती है ethanol, that is kind of an MSP setup, एक minimum selling price है। OMCs को उस price पे खरीदना है सारा का सारा ethanol. Now government might remove that price capping there and make it an open market. अगर open market होता है, then ethanol price will go down and this will hurt sugar companies. So means point is कि ये दोनों अगर it can happen, it may not happen. So better be on a lookout, have a stop loss, and अगर गिरता है तो don't just think कि शुगर है चलेगा।
take your losses, take your exit and understand कि ये story खत्म हो रहा है और someone knows something. So that's my point. I hope that answers Jatin. If you okay, Vineet, Himanshu, हाँ हाँ anyone आजू else? भाई Yes, yes. कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. आजू भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्या होता है RSI MACD वगैरह में यूज करता हूँ इंडिकेटर वगैरह, ठीक है। अब नॉर्मली प्रॉब्लम ये आता है कि प्राइस जैसे ही ऊपर आता है ना, और ऐसे ही वो इंडिकेटर ओवरबॉट हो जाता है, और ओवरबॉट हो जाता है उस चक्कर में मैं उसमें से एग्जिट कर लेता हूँ उसमें से। और वो प्रॉब्लम ऐसा है कि वहां से मैं निकल जाता हूँ, फिर वापस थोड़ा नीचे आके फिर वो प्राइस वहां से ऊपर निकल जाता है, इंडिकेटर थोड़ा नीचे आके। तो क्या मेरे को इंडिकेटर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या खाली प्राइस एक्शन ही फॉलो करना चाहिए? देखो, मैं तो पर्सनली बिग प्रोपोनेंट हूँ कि कुछ भी यूज मत करो, कोई इंडिकेटर मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, ओके एंड यू विल बी बेटर ऑफ. ओके। ठीक है, अब किसी को अगर इंडिकेटर पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. क्योंकि भैया इसमें क्या है कि इंडिकेटर यूज करते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है चार्ट के ऊपर से। ऑब्वियसली हमें हमेशा रहेगा. अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि ओवरबॉट कितना है, हाँ ओवरसोल्ड कितना है? कभी आप बोलोगे 75 ओवरबॉट है, 75 ओवरबॉट है, कभी बोलोगे 80 ओवरबॉट है. हाँ और सो मतलब डिसाइड कर लो ना यार, ओवरबॉट क्या होता है. और भैया उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, जैसे कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखा या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा, तो 5 मिनट में निकल गया, फिर 15 मिनट का वेट करते 15 मिनट में भी निकल गया। उस चक्कर में क्या होता है, फिर अपना जो 1 आवर का टाइम फ्रेम में जो आप जैसे ही देखते हैं ना, तो वो यहाँ से फिर और ज्यादा वहां से 1000 पॉइंट घूम जाता है। जैसे कि पिछले हफ्ते मेरे साथ बैंक निफ्टी में भी ऐसा हुआ कि मैंने 34,150 पे बाई किया था, तो 34,500 पे मैं एक टाइम पे निकल गया कि मार्केट ओवरबॉट दिखा रहा है इंडिकेटर के हिसाब से, और उस चक्कर में वहां से 1000 पॉइंट और घूम गया वहां से। एग्जैक्टली इसके ऊपर मैं एक स्पेस लूंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए. ओके, कौन सा टाइम फ्रेम पे किसी को भी आप चार्ट देखना चाहिए. और इसका अभी के लिए सिंपल आंसर रहेगा कि जिस पे ट्रेड नहीं करना उस पे देखो ही मत. ओके Means- ठीक है, अगर आप इंटरडे मतलब लेट्स से आप 5 मिनट पे ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप 5 मिनट का चार्ट ही मत देखो ना, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो. ओके डन है ना, मतलब खुजली वाला चीज होता है यार कि अब हाँ अगर हाँ आपको भैया 5 मिनट का फैसिलिटी मिल रहा है तो आप 5 मिनट पे भी देख रहे हो. 1 मिनट का फैसिलिटी है तो 1 मिनट पे देख रहे हो. कल टिक बाय टिक का फैसिलिटी मिलेगा, आप टिक बाय टिक भी लगा के बैठ जाओगे. मतलब आप वही समझ रहे हो, इशू आ रहा आपको काम नहीं है, जितना काम है आप उतना ही यूज लो ना. आप क्यों मतलब बिना काम का चीज का यूज ले रहे हो. है। ओके ठीक है. ठीक है भैया, ओके. थैंक यू भैया। या विनीत जी, हाँ एक हाँ हाँ. ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि वो वहां से गिरेगा। ओ- सेकेंडली वो उस टाइम फ्रेम पे हो सकता है, उस टाइम फ्रेम पे जितना मूव आ रहा है उसका कुछ पोर्शन भी नीचे आ जाएगा, तो उस टाइम फ्रेम पे वो ओवरबॉट कंडीशन हट जाएगी। हम्म सेकेंडली ओवरबॉट कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आपका 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, हम्म वो 10 कैंडल 5 मिनट्स के ओवरबॉट रह सकता है। कोई ओके ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके जहां भी ओवरबॉट की कंडीशन आप पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि ओवरबॉट देखते ही आप उसको शॉर्ट कर दें। ओके हर जगह ये लिखा हुआ है कैन रिमेन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एनी टाइम फॉर एज लॉन्ग एज इट वांट्स टू। ओके सो उससे कोई इंडिकेटर का रिलेशन नहीं है। ओके। और दूसरी चीज सर मेरे को पूछनी थी, मैं एक चीज वो और भी नोटिस करता था उसके अंदर, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे RSI 70 आ रहा है, और वो 15 मिनट पे जैसे कि 65 चल रहा है। तो मैं क्या करता था, जैसे ही 5 मिनट की RSI 65 को क्रॉस ओवर लेती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, जैसे ही वो नीचे आती है तो वहां से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, और उस चक्कर में फिर क्या होता है, वहां नीचे ही नॉर्मल मूविंग एवरेज या किसी का सपोर्ट लेके प्राइस वहां से ऊपर निकल जाती है। उस चक्कर में कंफ्यूजन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको पैसा कम मिलता है और ट्रेड ज्यादा करना पड़ता है, प्रॉब्लम वहां आता है। सर जो आप बोल रहे हैं उसमें आंसर भी आप खुद ही बोल रहे हैं। आप समझिए ना, वही चार्ट पे अगर मैंने और आपने दोनों ने लगा रखा है, हाँ ठीक है, सबको वही दिख रहा है। हाँ मैं आपके अगेंस्ट हूँ, ठीक है, मान लीजिए, हाँ जी ठीक है, या मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ, मुझे पता है इसको देख के लोग आएंगे लेने ओके या बेचने,
मैं आपके अपोजिट पोजीशन बनाऊंगा, अगर बड़ी बनाऊंगा, सिंपल, ठीक है, दैट इज द सिचुएशन एंड इट इज नथिंग एल्स। आशु भाई आप कंटिन्यू बोलिए। हेलो। Yes, Manshu bhai, agree with you here. Uh, Indicators are, very much abused. हर लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन बनाने लग जाते हैं that ओवरबॉट हुआ तो अब गिरेगा, सेल कर दो। ओवरबॉट का लेवल्स क्या है पता नहीं है, ओवरबॉट के बाद क्या करना है पता नहीं है। सो आप इंडिकेटर को ट्रेडिंग इंडिकेटर मत समझो, यू इंडिकेटर को आप प्राइस इंडिकेटर समझो, दैट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द बिहेवियर ऑफ द प्राइस, नॉट अ ट्रेडिंग एंट्री और एक्सिट। सो व्हेन यू सी समथिंग एज ओवरबॉट, आप उसको ऐसे समझो दैट द प्राइस इज मूविंग अप टू फास्ट, दैट the indicator is telling you that now it is just too fast, ये उसका इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर है। सो टेक इट दैट वे एंड उसके ऊपर आप फिर खुद का स्ट्रैटेजीज बनाओ कि ओके ओवरबॉट होने के बाद में मैं क्या कैसे करूंगा, क्या मैं पुल बैक्स को बाई कर सकता हूँ, क्या मैं ऊपर जाने पे शॉर्ट कर सकता हूँ। सो यू कैन थिंक ऑन दोज टर्म्स। ट्रेडिंग इज नॉट easy, you need to make your own strategies, make your own processes, otherwise it's very difficult for means to make money here. So that would be my added point. हेलो आशु सर, एक बार दोबारा वो मार्केट फॉरवर्ड का मैंने एक बार शेयर कर दो, मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो क्या लग रहा है एक दो दिन नेक्स्ट मार्केट लेवल्स थोड़े एक दो दिन ऊपर लग रहा है, एकदम सिंपल बोले तो। कोई लेवल्स है कुछ स्पेसिफिक, मतलब लेवल्स अगर आपको चाहिए तो एक सेकंड रुको। निफ्टी या बैंक निफ्टी? दोनों के बता दो। दोनों में ट्रेड कर। ठीक है, सुनो, सबसे पहले बैंक निफ्टी पे है ना 36,200 पे एक बार सौदा काट देना। अगर 36,200 जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जाने पे सौदा काट देना, लालच मत करना। ओके। और निफ्टी पे मैं फ्यूचर्स लेवल बोल रहा हूँ 36,200। ओके हाँ, सारा फ्यूचर्स है। और निफ्टी एक सेकंड, मेरे दोनों में लॉन्ग ले रखी है एक्चुअली। तो 16,600। ठीक है, थैंक यू। ओके। एंड आज का स्टॉप लॉस रखना, आज का लो तो हार्ड स्टॉप लॉस है, ये एकदम याद रखना, आज का लो हार्ड स्टॉप लॉस रहेगा। एंड सॉफ्ट स्टॉप लॉस 16,250 हो गया निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे हो गया 15,500। ठीक है, ओके। या मुरारी शर्मा जी, सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। सर एक चीज जानना था, ये सब ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं कि ये वाकई में मार्केट टाइम में जब चलता रहता है तो उतना हमको लगता है कोई विजुलाइज कर पाता है या स्टडी कर पाता है, ये कैसे इंटरप्रेट करता है सर? ये एक थोड़ा सा मतलब हम न्यू है ट्रेडिंग में, और सबका देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट देख के ये कर दिए वो कर दिए, ये लेवल है, फिर भी ब्रेक करता है, फिर भी वहाँ पर आदमी लॉस ले रहा है। सर ओपन इंटरेस्ट पे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर कर दीजिए कि वाकई में ये देखना चाहिए एंड ऑफ डे, या फिर कैसे उसको ट्रैक करना चाहिए सर? इस पे आई गेस रणविजय बोलेगा तो बेटर रहेगा, बिकॉज जस्ट ओपन इंटरेस्ट में उलट पे छोड़ता हूँ। हाँ, नहीं मैं भी ओपन इंटरेस्ट को बस थोड़ा बहुत देखता हूँ, अमित सर वगैरह ज्यादा देखते हैं, पर मुरारी सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं, ठीक है, सो एक्ट फास्ट होना चाहिए। प्लस सेकेंडली जो आप कह रहे हैं ना क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, यूजली क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोल सकता, जब मैंने कभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी बहुत पहले, तो मैं ना हर चीज को देख रहा होता था, हर स्टॉक को, जो कोई ऊपर जा रहा दिख रहा होता था, लेफ्ट राइट सेंटर, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता था, ये जा रहा है इसको पकड़ लूंगा, वो जा रहा है उसको पकड़ लूंगा, टीवी में आ रहा है उसको पकड़ लूंगा, इसलिए मेरे लॉसेस भी होते थे ज्यादा। हम अपनी चीजों को कॉन्सेंट्रेटेड कुछ जगह पे नहीं देखते, हम उनको, जैसे मेरे 10-12 स्टॉक होंगे, मोस्टली मैं उन्हीं को देखता हूँ, उसमें 2 इंडेक्स मान लीजिए, तो उस पे मेरा स्टडी ज़्यादा बेटर रहता है कंपेयर टू मैं अगर
रैंडमली किसी चीज को देखने लग जाऊं, क्योंकि उसके हर पर्टिकुलर पैरामीटर पे कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं, या लोग बहुत टर्म यूज करते हैं ऑपरेटर कैसे बिहेव करता है, या उससे स्टॉक का क्या बिहेवियर है, बात सारी वहां पे आती है। तो जितना ज्यादा आप किसी चीज को एक को देखेंगे, नोट करेंगे उसके बिहेवियर को, तो वो उस चीज पे, उस पैरामीटर पे क्या चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में भी ये फॉल्स है या राइट है, या इसके चांसेस कैसे हैं, वो उस तरह से हम उसको जज करते हैं। जैसे आपके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाए शायद, लेकिन कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन आपके जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स वगैरह हैं या फैमिली हैं, वो आपके बारे में ज्यादा व्यूज बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ज्यादा टाइम से स्टडी कर रखा है। सो मार्केट में भी ऐसा ही होता है सर। आई होप थोड़ा सा बता सकते हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया रणवीर आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, एकदम अपना फोकस नैरो कर लो। लाइक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है, 4 इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है, एट मोस्ट 8 से तो 10 इंस्ट्रूमेंट ट्रेड अशोक सर ये क्वेश्चन आप ही के लिए आ रहा था कि जैसे ये बोले कि मतलब सिलेक्टिव हम Yes. मेरा क्या प्रॉब्लम हो पाता है कि हाँ? 10-12 स्टॉक हम कैसे फाइंड आउट करें? हम तो मतलब नहीं डिलीवरी नहीं नहीं देखते नहीं हैं तो ये है नहीं, बड़ा, ये है। आप फाइंड आउट नहीं करिए, वही बात है ना। आप पहले से ले लीजिए कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी करना है। स्टॉक्स करना है तो रिलायंस करना है, या एक दो वॉलेटाइल स्टॉक्स जिसको जो आपको पसंद है। आप कुछ भी खोल के देख लो, आपको जिसका नाम पसंद है, जिसको आप लग रहा है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, चार्ट अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, आप कुछ भी पकड़ लो, डजंट मैटर। आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ ले लो, डजंट मैटर। आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए बस अपना जिंदगी भर का पैसा बनाने के लिए। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ एकदम नारो फोकस रखो, सिर्फ निफ्टी। आप निफ्टी को एक चीज को इतने अच्छे से समझ लो दैट लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट में क्या देखें, इवन इंडिकेटर्स में इंडिकेटर्स कैसे देखें। बट वंस यू अंडरस्टैंड एक इंस्ट्रूमेंट को आप बार बार डे इन डे आउट आप देखोगे, हर मिनट देखोगे, आपको उसका फील आएगा कि ओके हर बार यहाँ से इंडिकेटर घूम रहा है, हर बार यहाँ से चार्ट्स घूम रहा है, हर बार यहाँ पे इंट्राडे का ऐसा पैटर्न्स होता है। हम लोग मार्केट प्रोफाइल में यूज करते हैं इंट्राडे पैटर्न्स। हम लोग के पास में हर दिन का एक टाइप होता है, हमने 6 टाइप का डे टाइप्स बना के रखा है। दैट आज के दिन को हम बोलेंगे ओपन ऑक्शन, आज को बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल एक्सट्रीम डे। सो हमने सबको कैटेगराइज कर दिया है कि आज कौन सा दिन बनने वाला है। हम उसको विजुअलाइज करते खुद से कि आज हाईयर प्रोबेबिलिटी है ओपन ऑक्शन होने का या न्यूट्रल एक्सट्रीम बनने का। सो डू इट लाइक दैट। आप एक चीज पे इतना फोकस कर लो दैट आप उसको, मतलब आप क्या बोले, दिन भर रात भर आप विजुअलाइज कर सकते हो कि कल तो ऐसा चार्ट बनने वाला है, मैंने ये चीज पिछले महीने देखा था या पिछले 6 महीने पहले देखा था, ये अब रिपीट होगा। नहीं, You'll get जब that आप confidence. आप सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं सर, जो अमित सर एक बार अपना स्पेस में बोले थे कि फोकस वन थिंग एंड निफ्टी ओनली, नथिंग एल्स, हाँ, और पैसा बनेगा। हाँ, मेरा ट्रेडिंग में मतलब फ्यूचर्स ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस होता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करना है और कुछ नहीं करना है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। नहीं सर, तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जैसे मान लीजिए कि उस इसमें भी कहता है कि पैसा जाता है, ये है, तो मतलब हाँ, हम एक सियोरिटी चाहते थे कि ठीक है हम अपना कैपिटल जो है वो मतलब 50% डाल देंगे स्टॉक्स में, जो कि स्टॉक्स कुछ पैसा देते हैं हमको, और फिर जो बैंक निफ्टी में मतलब खुल के खेले कि भाई ये जाएगा भी तो मेरा एक बैकअप है स्टॉक के पीछे। हम्म, ये चीज हम ये था, तो उसके लिए ही हम स्टॉक्स खोजे थे कि 3-4-5 स्टॉक्स नहीं का। मुरारी जी, आशु बोले उससे पहले मैं आपको दो चीज बोलना चाहूंगा। यस सर, आप मार्केट में पैसा बनाने आए हैं, 100%। आपका अगर कैश से बन जाता है तो आपको कुछ और देखने की जरूरत क्या है? अल्टीमेटली तो गोल पैसा बनाना है ना। हम उसको देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना कि उसमें जाए जाए निफ्टी वगैरह में, ऐसे नहीं सोचना है ना सर। अल्टीमेटली पैसा बचाना और पैसा बनाना दो ही चीज के लिए आते हैं मार्केट में, वो किसी भी चीज से बने। दूसरा, जैसे आशु बोल रहे हैं आपको निफ्टी अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी के 2-3-4 मेन कंपोनेंट हैं जो कि उसकी मेजर स्ट्रेंथ या वीकनेस को बता सकते हैं। आप शायद उनको साथ में देख लीजिए। बैंक निफ्टी में 4 बैंक हैं। अब कोई छोटा सा बैंक आएगा जिसकी 1% की अगर या आधा परसेंट की उसमें वेटेज है, वो कितना ही भाग लेगा, वो कितना मूव कर लेगा अगर बड़े वाला कोई स्टॉक है जो कि नेगेटिव में जा रहा है। सो दैट इज द ओनली मैटर। थर्डली, स्टॉक्स जब आप सिलेक्शन की पूछ रहे थे, अगर आप सिर्फ उसके अलावा भी देख रहे हैं, हर स्टॉक का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। वो लो वोलेटाइल है, हाई वोलेटाइल है। आप कुछ स्टॉक्स में उम्मीद कर सकते हैं 5%, 10%, 15% की भी मूव दे सकता है कभी कभी।
और कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें कि दिन में अगर 2% की मूव आ जाए ना, 2.5% की मूव आ जाए, बहुत बड़ी मानी जाती है। वॉट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आईटीसी अगर आज से आप 4 महीने पहले देखेंगे, हम सब लोग लेते हैं करते हैं, लेकिन वो दिन में 2% 3% कितनी बार मूव करा है पिछले 1.5-2 साल में। पिछले 6 महीने में वो कम से कम 20 बार मूव कर चुका होगा। So वो दैट इज व्हाट वी सेइंग कि हम लोग उसको स्टॉक को जानने लगते हैं या उस इंडेक्स को जानने लग जाते हैं, उसके कंपोनेंट्स का क्या बिहेवियर है वो जानने लग जाते हैं। लॉस तब भी होता है और स्टॉप लॉस तब भी होगा। हम स्टॉप लॉस लेके अपना बैठ जाते हैं कि आज चलो जैसा मैंने एंटिसिपेट किया वो मूव नहीं आया, हम बाहर हैं। लेकिन अगर आपका कैश में पैसा बन रहा है तो वाई वरी अबाउट इट। अल्टीमेटली तो पैसा ही बनाना है ना सर। जी सर। मजे लेने हैं तो सर बहुत और चीजें भी है ना करने की। नहीं, मजे नहीं लेना है सर, ये तो है। नहीं मतलब नहीं सर, बड़े प्लेनली बोल रहा हूँ। देखिए सर, हम भी लेकिन बिगनर्स थे, हमने भी लॉसेस करे हैं सर, हमने हमेशा लॉसेस करे हैं। हम खुल के बोलते हैं, आशु सर भी बोलेंगे, अपना अमित सर भी बोलेंगे, सब बताएंगे आपको, ठीक है। दैट इज अ नेचर। लॉसेस को कितना मिनिमाइज कर लेते हैं। अब वो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लें, कैश में करें, जैसे भी करें। जब आप स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं, अगर आप फ्यूचर एफएनओ की बात करते हैं, स्पेशली स्टॉक्स में, क्योंकि निफ्टी की लिक्विडिटी एक अलग है सर, और स्टॉक्स में अगर आप एफएनओ की बात करते हैं तो देर आर वेरी फ्यू स्टॉक्स। मे बी यू नो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स आ गए हैं एफएनओ में, लेकिन आज भी अगर एफएनओ कर रहे हैं तो मे बी 10-12, मैक्सिमम 20-22, इससे ऊपर स्टॉक्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि मैं अपने मन से घुसूं और अपने मन से निकल जाऊं ऐसा करके। आई थिंक आशु सर, आशु भाई एग्री करेंगे इस बात से और वो कंटिन्यू करेंगे इस पे। यस यस एब्सोल्युटली, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। थैंक यू सर। आई थिंक बहुत क्लियर हो गया डाउट मेरा, क्या कि न्यू मतलब न्यू पर्सन्स के लिए ना वो मतलब मेथड वे ढूंढने में ही अरे 6 महीना चला जाता है। खाली टेंशन होता है और कुछ नहीं होता है। आप कितने कितने चीज को मॉनिटर करोगे, करोगे अगर सबको मॉनिटर, तो अब कुछ बाई बोलेगा कुछ सेल बोलेगा, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इंडिकेटर लाइफ में लगा के क्लैरिटी तो होना चाहिए ना। आप कई सारे बोर्ड्स पे थोड़ी पैर रख सकते हो, एक बोर्ड पे पैर रखो और आगे बढ़ो। स्लो सर जाओगे फास्ट जाओगे, मतलब नो वन नोज, बट एटलीस्ट आगे तो जाओगे। मुरारी सर, क्या दिक्कत होती है जब हम नए आते हैं तो हम सबकी सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं इन टर्म्स की, भाई उसने इस इंस्ट्रूमेंट से इस स्टॉक से इतना बना लिया, ठीक है। उसने उस चीज पे कितना टाइम लगाया या क्या करा, अगर वो सच में उसने बनाया तो उसने उसमें कितना टाइम लगाया, वो उससे कितना फेमिलियर है। और उसने, हम क्या सर अच्छी अच्छी बातें तो सुन लेते हैं जब हम नए होते हैं, ठीक है, कि वो रोज इतने लाख बना के चले जाता है, वो कभी लॉस करता है वो हमने सुना, कभी नहीं सुना। ये सब भी बातें होती है नए में ना सर। हमको क्या देखना होता है कि हम बैलेंस व्यू, ठीक है। आप अगर किसी को फॉलो भी करते हैं, कोई अगर कॉल दे रहा है आप उसको फॉलो करें, जस्ट सिंपल एग्जांपल, मे बी टीवी में वो क्या बोल रहे हैं एक अलग बात है। कभी आप उनके 20-25-50 कॉल्स को लेके देखिए ना, या स्टडी करके देखिए सिर्फ बाहर बैठ के कि क्या एक्चुअली में वो सब वैसे ही हुआ। बहुत टाइम क्या होता है, जैसे मैं और आशु या किसी से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आशु से ही बात हो रही ग्रुप में, मैं अगर कोई स्टॉक बोलूंगा 100 रुपए पे, ठीक है, बाय द टाइम हमारा डिस्कशन होगा वो 102 पे होगा या 3 पे होगा, ठीक है। टारगेट हमने 110 कर लिया, मेरे को तो 10% का फायदा हुआ मान लीजिए, ठीक है। जो उसको लेने पे बैठा, क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट आई तभी हम लोग कोई गए, ठीक है। उस उनको उनके लिए उनका आरआर उस बेसिस पे बैठा है नहीं बैठा है, ये बहुत मैटर करता है बाद में जाके। और कैश न्यू, जब हम मार्केट में होते हैं, न्यू इन द सेंस मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ कि और हमने भी स्टार्टिंग में ट्राई किया होगा, लेकिन 2-3 साल के लिए नए मार्केट में हमको कैश में ही बेटर रहता है। उसके बाद हमें धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, तब हम लोग बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज आप किसी भी एफएनओ क्या है, लेवरेज। हम हर जगह बोलते हैं लेवरेज, एंड लेवरेज की बहुत बड़ी बात है। इंडेक्स भी अगर आप लेते हैं 1.5-2 लाख में जो मिलता है आपको, या आप शॉर्ट कर रहे हैं लॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में, उसकी वैल्यू क्या है, 8 लाख। वो 8 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, 8 लाख से 8.5 लाख, 9 लाख, ये लेवल पे उसका वो है। तो हमें लेवरेज पहले से ही मिल रखा है ना, हमको लगता नहीं है कि हम लेवरेज लेके बैठे हैं, लेकिन वो लेवरेज है सर, वो है। जब आप इंट्राडे करते हैं थोड़ा सा कम मार्जिन से सेम चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं,
वो लेवरेज है सर। सो उसलिए ही हम उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, बिकॉज उससे हमारा स्टार्टिंग में आदत नहीं होती और रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। जी वो हो जाता है। So hope that answers for you, Murari ji. Will move. Yes, definitely sir, definitely sir. Thank you sir, thank you. Okay, yeah. Yeah, Abhishek, you can ask a question. अभिषेक जी, काइंडली अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। आशु सर वेट करें, नहीं तो फिर किसी और को चांस देंगे। Okay, let's start. Yes, yeah, Maru. Okay, tree. Yes, you can speak. Tree Jupia. You need to unmute your mic to speak. हेलो। Yep. हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन था। हेलो। Yes, yes, बोलिए। हेलो। आपको आवाज आ रहा है? हाँ सर। बोलिए। हाँ सर, ये निफ्टी में 1:30 बजे स्पाइक आया था, मतलब ये 60 पॉइंट का स्पाइक आया था, तो उसको कैसे ये किया फ्राइडे को? नहीं कर सकते हैं। स्पाइक आया था तो आप क्या करोगे उसमें? अब स्पाइक आया था तो आया था, उसका मतलब आप करना ही क्या, और मतलब कोई क्या करेगा? मैं देख रहा हूँ स्पाइक आया था, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। आप क्या करोगे? कोई भी क्या करेगा? किसी को पता थोड़ी स्पाइक आने वाला है। Okay, I'm not sure if he's there. Anyways, Vishal, you can ask. Hi, thanks for this opportunity. Can you hear me? Yes, yes. I just had a question on SBI. Given the interest rate hike which has happened and in the short term expected to happen, for say It is 6 months horizon. Yes, it is bullish for now, and till the time interest rates hike in moderation means we have like maybe on FD we get to 6% kind of range. Till that time we are good. Post that we'll need to see, means for the next 50 basis to 100 basis point we are fine. Post that we will need to reevaluate. There may be some stress, but right now it's fine. Like it's positive for the banks actually. So any levels you're looking at? If you can suggest some levels, or actually, to be honest, I'm a bit invested on high side too on this. Invested for that matter. On SBI, right? Yeah. Are you on cash futures options, like what cash? I would be holding around 6,000-7,000 shares in that. From which level are you holding? 480. So I'm just about there. Okay, cool. So if based on your capital size, if you think that this is fine for you, then you can keep on holding. But if you think that you have over leveraged, or you are a bit uncomfortable with your position, decrease your quantity at 480. Yeah. And maybe get back up again above 490. Means if we go back up above 490, then maybe try to add back your positions, but at least exit once at 480 some quantity. Okay, I get a feedback. And any levels you're looking at in the next 6 months time, I can foresee if I am holding back. Look, if we go above, like if we basically give a new breakout above 550 kind of, then we can see a good move. But till then, like we are in a broad range, so
it would be quite fruitless to predict anything. Like no one knows Agree. if it Agree. will Agree. take or Agree. not, right? And on just to understand the thought process of interest rate hike, if you can just guide me something on that, that I would understand that interest rate hike would support bank where yes they would get the funds at a bit higher rate, but they were Yes. going to lend in market also at a higher rate. And I would believe that the NII would increase because the India growth story is intact. Corporates would need loans, existing loans will continue, top ups will happen, and Okay, I get your point. Okay, first let me point you to a different direction. Think from this direction. You have banks and NBFCs both are competing for the same business on correct. the retail consumer side, right? Yeah, Okay, correct. so when interest rates rise, the cost of borrowing or the cost of capital for the banks will rise marginally because they have CASA and all these low cost, funds, savings account and all Yeah, these, yeah, Mr. right? Mesade, yeah, correct. Yes, right. But for NBFCs, the cost of capital is gonna rise exponentially. Correct. Okay, so banks will be in a better position to lend and to give a better interest rate than all these NBFCs. Perfectly So correct. you'll see a market transfer, share transfer from all these NBFCs to these traditional banks, and that is a big positive for them. Yeah, when interest rates rises exponentially, like you have a 2% kind, 3% kind of a hike, then everything goes down the drain. You have a recession kind of thing then. Correct. But then Okay, but that's not the expectation, I would think. absolutely that is not expected. But at least till the next 50 basis point or 100 basis point, I think banks are good. Perfect. Thank you. Thank you for Okay, this. and And one more small they're opinion. trading at cheap valuations too. Yeah, I would understand. I would agree on that. Your opinion, Tata Steel, also, if you don't mind. That's my last question. Tata Steel I've shared in the past. Okay, I'll just repeat it. All these metal stocks are gonna go to the dogs. Okay. Exit while you can. Exit. Okay, I get the feedback very clear. Thank you. Thank you very much. Yeah, yeah. Yeah, विशाल Rajnish, जी, yeah. विशाल Yeah. जी, दो चीज आपको मैं बोलता हूँ. एक Please. एक बात समझिए. अ, जब हम बैंक्स की बात करते हैं, Yes. जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, Yeah. ठीक है, सो आप इस बात को समझिए कि अ, अगर उसका जो प्रेजेंट लोन्स है उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. Correct. सो विदाउट इवन एडिंग सम न्यू कस्टमर्स, Yeah. ठीक है, आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ रहा है. Yes. ठीक है, इज इट गुड और बैड? इट इज गुड, राइट? It's both sides. Yeah. या, Yeah. सी, ठीक है, until unless it goes very high, then people start running away, Hmm. you know, or get afraid of taking loans. Hmm. Till the time it is perfectly fine. I understand the rate hike might have a bit of impact in retail loan segments, but the Sir, no, sir, biggest. no, not really. Especially not retail loans. Little bit of, see, आपको और हमको in terms of retail, जब हम बैंक्स में जाते हैं, हमें कोई वो प्रेफर्ड टर्म्स तो देते नहीं है. बिल्कुल नहीं देते. सो तो मैं हमको खुद जो मेरी बोलेगा, स्पेंडिंग डिले कर दूंगा. सर क्या होगा, आप और हम जैसे लोग जाएंगे बैंक में, ठीक है, हमारी जरूरत है इसलिए जा रहे हैं. करेक्ट. ठीक है, सो जो रेट वो देगा हम लेंगे. बिल्कुल. ठीक है, टिल द टाइम वो पानी सर के ऊपर से चल जाए कि हम ये समझ जाए कि you know that asset or the thing we want is now out of our reach with the kind of loan we are getting at what Correct. price. Correct. Agree. So uh, interest rate hike is generally good for the banks. That is not an issue. The thing comes in, if it is too sudden, too high, then the economy slows, and when the economy slows because of that, generally because the loans and other thing stops, right? Correct. that is Agree. that is the only concern. That level is a bit high in case of India. First thing is that. Secondly, in case of Tata Steel or any steel, right now government has put a condition on them. I Right? understand this is a short. I would think that this is a short term measure government has taken, but on a medium term, See, the growth is there. any commodity, sir, any commodity, any stocks related to infrastructure. Yeah. If there is demand, if there is growth, if the economy is doing good, infrastructure is getting built, will do good. But there was
lot of froth in the sector. Ashu bhai also knows one of our friend who buys steel for his company, as in he does something with those things. Manufacturing, okay. Yeah, manufacturing. He had very difficult time in last 5-6 months in terms of buying. The price was keep on going increasing and increasing, like too high from the average. See, when we look at a stock also, we say okay, it has risen too much too fast. So उसके मीन से वो बहुत दूर चले गया है, या उसकी एवरेज से बहुत दूर चले गया है. Agree. They will be pulled back, it will come down. Correct. Commodities as it is a cyclical business. Hmm. So that is our answer. Baki buy and sell levels matter to somebody who's personal, their personal opinion. Agree. In terms of SBI, I can just tell you, because you said you have a huge quantity. I don't know how much percentage of your portfolio it is, and how long you were hoping to hold it. If the levels come, what Ashu bhai says, if it is on a higher side in terms of your portfolio amount, Yeah. better get out of it partly, at least, so that if you find any other better opportunity, you have some cash to move to those opportunities. That is the Agree. only concern. Any Otherwise, it is your recommendations? wish. I understand. I understand that the feedback. I was looking for feedback again. Thank you for that. Any recommendations if I have to resize the portfolio? See, I'm right now connected from outside, so that Ashu I can give if he has Recommendation as in? Any stock specific, sector specific recommendation for 6 months to 1 year horizon? There are many. You just DM me. I will look into it. Okay. Okay. Thank you. No worries. Thank you, guys. Thank you very much. Chalo. Yeah, cool. Let's move forward. Yeah, we'll take few more questions and then, kind of wind this up. Okay. Who invest? Yeah, who invest? Rakesh. Yes, Ashutosh bhai, good evening, everyone. Yeah. Good I'm evening. Rakesh from Jaipur. Yeah. Sir, I just wanted to ask your view about Apollo Hospital. Okay. So, do you have any positions there? Yes, I do have. Actually, I'm carrying put of Apollo Hospital, which is 3,400 put for 30th June. Sorry, we And won't be able to comment on matlab, individual positions. Cash ka it's kind of understandable, but futures options ka it's difficult to comment on individual positions. okay, you can just give me information about cash only, like how the stock will gonna Okay. perform. Consolidation में है, it may go for a day or two, but I won't be very bullish on that. कोई news हो सकता, okay, results आया है, so results के बाद ऊपर जा रहा है. I'm not sure what will happen post this. Okay, so you're not sure about it. Yeah. Because the day results was announced, the same day I have taken position, and I was You are expecting it. you are long put, right? No. I'm carrying put. Yeah. Long put means you have bought put, right? Yes. I हाँ, have bought put. Yes. right. Exit कर जो मिलता है ले लो. कल Exit सुबह कर जाए एग्जिट हमें. कर या मंडे को सुबह एग्जिट कर दो, जो मिलता है ले लो. और अगर लॉस सिचुएशन है तो then should तो not जीरो hold. तो जीरो होने का वेट कर लो. Okay. अरे लॉस है कि प्रॉफिट है डजंट मैटर ना. मैटर है कि आगे क्या होगा. योर पोजीशन इज गोना गो टू जीरो. दैट इज अ फैक्ट नाउ. So Okay. either you exit it and जो मिलता है ले लो, or you wait for it to do whatever and last में zero. Okay, just let the broker exit it. Okay. And one more thing, if you can just let me know about it also. Tata Tele, if you can नहीं हो just. गया यार. आप positions पे नहीं. No, it's TT not position. I'm talking about cash. TTML. Yes. Sir, Rakesh ji, on Apollo right now it is bullish. So that is what Ashu also said. Long side में build up अच्छा है, बड़ा है. That is all we can say. कल को क्या होता है we can't say. Right now it is bullish. I understand. Yeah. So that is then
where to exit depends on you. You are Okay. ready to, you know, wait out, Uh-huh. try your luck. That Mhm. is आपके ऊपर डिपेंड करता है सर. जी जी. पुट्स में जिसके जिसके पास भी आई गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स ऑन पुट्स. पुट्स सबका एक्सपायर्ड होगा 0 पे, एग्जिट कर दो. Okay, got it, got it. How about TTML? TTML is a circuit stock. Yeah, no comments on that. Yeah, I Circuit stock understand. basically means it will go up or down in circuit, so no comments. I Yeah, won't I invest, understand. I won't recommend anyone to invest, and I'll just stay the hell out of it. Okay, okay, certainly. Thanks a lot. Thanks for providing platform as well. Thank you. Chaliye, thank you. Okay. See, one thing which we mentioned earlier, Ashutosh bhai, कि हाँ हाँ. don't trade in illiquid stocks in FNO. You know, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि किस स्टॉक में उसके बिड एंड आस्क क्या है, उसको देख के पता चल जाएगा. Anybody who wants to do FNO, kindly do, especially starting 4 5 years in stocks which are very liquid. Probably liquidity wise आप गूगल पे लिस्ट देखेंगे, आपको 10 15 20 स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी. चार्ट्स पे भी दिख See, जाएगा आपको, अगर सर्किट पे सर्किट लग रहा है ना, इट्स लिक्विड. हाँ जी, चार्ट्स पे भी दिख ऊपर जाएगा आपको ये. सर वो भी है. दूसरा क्या होता है लोगों को, सी देखो, मार्केट है, लोगों को अपने लोग स्टॉक्स लाने एफएनओ में. जरूरी नहीं है कि एफएनओ में आने के बाद उसके उसमें लिक्विडिटी रहे. तो आपने ले भी लिया, आपकी पोजीशन सही भी चल रही है, आपको दूसरी तरफ का कॉरस्पॉन्डिंग बायर या सेलर चाहिए अपनी पोजीशन को खत्म करने के लिए. क्या वो आपको आपके लेवल पे मिल रहा है या वो बहुत दूर है, तो वो देख के जरूर करिए. टीटीएमएल के तो आई थिंक बिलो 100, अराउंड 95 के आसपास आपका एसएल होगा. बट इट इज सो लिक्विड थिंग कि वी जनरली डोंट कमेंट ऑन इट. बट अगर आप चाहते हैं होल्ड करना, होल्ड करिए, लेकिन 95 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा. वो उसके आसपास आएगा तो आप जरूर मार्केट ऑर्डर पहले से बिफोर ओपनिंग एएमओ डाल के जरूर रखिएगा. फिर भी सर्किट लग जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बैठे रह जाओगे. आपका स्टॉप लॉस है जो भी, इट डजंट मैटर. सो जस्ट स्टे आउट फ्रॉम सर्किट स्टॉक्स. बेसिकली हम लोग का यही पॉइंट है. एक सेकंड हिमांशु, बिफोर दैट वी हैव सैन भाई हियर. सो वेलकम सैन भाई. इट्स प्लेजर फॉर अस टू दैट यू हैव जॉइंड आवर स्पेस. एंड कुछ थॉट्स बताइए अपना, लाइक what are you looking at, what are you doing? Anything casual also works. Hi, Atish. Good night to everyone. It's still evening for me. It's still evening for me. Uh, well, I was not quite Do connected to market, but fortunately, I get a chance to go through some charts today. So I will just give my comments on it. Sure. Uh, you guys were just discussing about the cash stocks. So on cash side, I like two stocks. One of them is Ratnamani Metal. Our stock has been showing the strength in this weak market, and stock can attempt an all-time high soon. So that is the one stock I have eyes on me. My eyes on that. A precise level I won't be able to tell because I have not checked chart from last 1 week. And the second stock is a Blue Dart. Blue Dart is again a one stock that is showing a really good strength in the weak market. So these are the stock. Which shows strength in the weak market, could be the leader when broader market start performing. So these are two ideas from my side on the cash side. And yeah, there was someone was talking about TTMLC. Trading a small cap stocks with a low float has a pros and also cons. These kind of stocks can give you really good momentum. You know, you can make 100% or even 200% out of it. But the downside is this stock can even surprise you on the downside. So you one need to be very picky trading these stocks. And Asutosh, you rightly point out, it's better to stay out of the stock where there is a circuit 5% or even a 10%, because then it becomes really hard to get out of it. And yeah, on indices,
Indices, um, I have seen a lot of people talking about bottom, bottom, bottom. Um, in my experience, what I have observed is the bottom do not form in a single day. It take a couple of days, and that is exactly what happening in the Nifty. We made a low of 15,800 around, and from last 1 week, Nifty managed to save that low. And eventually, if you look at the hourly chart, we are making high low formation. So that's the first sign that finally we are somewhat out of the water. Now, if Nifty cross 16,480, then we can expect 16,800 on the upside. And mind it, these are just a probability. And relative to Nifty, Bank Nifty is showing strength. The rounding bottom pattern on our chart has formed, and even crossed the neckline. So yes, I think Bank Nifty should outperform on. And from the Bank Nifty space, I'm bullish on ICICI Bank. ICICI Bank may do 780. Please pay attention to the word may, 780. uh, and one can keep a stop loss of 700. That is it from my side. थैंक्स सानभाई, डाटा इज वेरी हेल्पफुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग. एंड आप अभी कहाँ पे हो, लाइक आप दुबई में हो या बाहर हो? No, presently from last 10 days, I'm in Belgium. Oh, nice. Unfortunately, I'm in Belgium. It's not nice at all. Okay. Okay, I thought Belgium would be nice. It's nice for a couple of days, but then you start, you want to go back to your home. So yeah, it was nice for a couple of days, but Right, not right. much. That happens. सर Homesickness हमको kind of यहाँ से thing. बैठ के अच्छा लगता है, आप वहाँ पे Yeah, everything looks nice from outside. It is even applicable for the chart and trading. Everything looks so easy and nice from outside. दूर के ढोर श्योर श्योर सुहाने सर. लगते हैं. Do that. आशु, सैनिक सर को मैंने स्पीकर बनाया है. सैनिक सर, आपके व्यूज भी आप बताइए जरूर, बिकॉज या नमस्कार. इन इनिशियली डिस्क्लोजर देते हैं सैनिक सर. बहुत लोग हम में से शॉर्ट भी बोलेंगे, बहुत लोग लॉन्ग भी बोलेंगे. वी डोंट वरी अबाउट कि दूसरे का व्यू क्या है, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन स्टॉप लॉसेस, देयर ओन व्यूज. जो हमसे अलग है, सेम है, डजंट मैटर सर. आप सीनियर हैं, व्यूज जरूर हो सर. या नमस्कार Ranvijay sir. Thank you very much. I don't really have much to say since what I said last time, except to just emphasize that I think things are getting better and better every day on the global front. So I believe that the rally will surprise a lot of people. Definitely, it will surprise. Not will, sorry, is likely to surprise a lot of bears, and most probably it will surprise a lot of Uber bulls also. So this rally will not, I mean, is unlikely to be one of those short covering rallies. It will take, I believe that it will go much, much higher than what some of us are speculating here. Now, the only caveat here is that based on current news, bad news, whatever news we know, I am hopeful and fairly confident that we will see much higher levels. Now, the only caveat here is that, if there is something new, bad news comes, for instance, say China attacking Taiwan, or something which is new, which is not known to us, or suddenly oil going to 200, that is crossing that 138, something which we have not put it in our calculations right now, which we are not able to foresee. If that comes, then obviously all bets are off. For that, my stop loss is 15.6. I've been bullish since 15.8, and I think this will be a really a spectacular rally, which will rival even the rally which we saw between March 5th and April 4th. So I'm extraordinarily bullish, or I'm bullish in this manner. I have taken into consideration every bad news available today, and I think we are sitting on a beginning of a very good time for bulls. But this probably this rally is likely to be led and maybe contained only in the large caps. I don't know about the small caps and mid caps whether they'll really participate.
So we may see something like 2018, where the large cap rally was on between January and August, but the small caps hit newer and newer lows between that same period. So this is all I have to say, and I'm preparing for my clubhouse tomorrow, and day after tomorrow I'm Cool, cool, cool. planning a Thanks. Yeah, spaces. yeah, So that's all, sir, at this point of time. Thank you, yeah. sir. Thanks for sharing your views. Okay, Himanshu and who invest, you can ask a question. Yeah, okay. Hmm. Is my voice clear? Yes, yes, it is. Yes, thank you for giving me this chance. Okay, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मैं एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहा हूँ फोकसिंग ओनली ऑन निफ्टी Mm-hmm. और इंट्राडे है और सिर्फ दो ट्रेड लेता हूँ मैं दिन में, बाय का और एक सेल का। तो उसमें मेरे को कितना टाइम मुझे फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहिए कि जो है मैं ये कहूँ कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। फिर से एक बार स्ट्रैटेजी क्या था? एक स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज एंड बुलिंगर बैंड पे है, उसमें सिर्फ दो ट्रेड होते हैं मेरे दिन में, उसके बाद मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ। मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। ओके, बढ़िया है। तो उस स्ट्रैटेजी को सिर्फ दो ही ट्रेड है, उसमें भी बाय का तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल है, वो 3-4 महीने में एक आता है मेरे पास। तो उस स्ट्रैटेजी को मैं कितना टाइम फॉरवर्ड टेस्ट करूं, मतलब मैं कर रहा हूँ एक लॉट से, सिंगल लॉट से कर रहा हूँ। San bhai would like to counter you, yeah, answer your question. San bhai, yeah. Yeah, yeah, I just heard that you are implementing the moving average day trading strategy. See, Yeah. it's not about the timing, it's about the market, because moving average generally do well in a trending market. So Mhm. even if you do forward testing for next 30 day, and if market is trending, you will get fantastic result. Mhm. But if market get sideways, then moving average based strategy do not perform well. To be Mhm. honest, it will disappoint you. So Mhm. it's not about the days of forward testing, but it's about the market environment. You should test it in the trending market as well as the consolidating market. Then you Mhm. will get the real feel of it. If it is based on the moving average, because I have tested almost all the strategies, and Mhm. moving average is one of the simplest one, and it gives fantastic result when the market is in a trending nature. So Mhm. please pay attention to that, because right now from last 2-3 months market is trending either upside or either on downside. Mhm. So definitely moving average based system on in day trading gonna give you really good result, but just test it in a consolidating market, then you will get the real feel of it. So if I say I will try the strategy for 1 year period, will it be enough? Exactly, yeah. One year period will be enough, but if you look last 1 year, in last 1 year 70% of the time market was trending, which is against the general thesis that market only trend 30% of the time. Mhm. So that also makes it little complicated. So Mhm. to be honest, I have seen the San, market when San, yeah. San, Amit Yes, here, sir. Amit here. San, Yes, sir. क्या स्ट्रेटेजी की बात हो रही है जो बैक टेस्ट एक साल में करने जा रहे हो आप लोग? It's about moving average. So, intraday trading strategy based on moving averages. Okay, 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 no issues. I'll add once you finish. I'll add. Yeah. So, brother, you try to, if you can see, if you can by any chance plot the volatility and check if volatility is below uh, 15 or 12, which was very common Mhm. prior to this pandemic situation. And if in that scenario, if your strategy is working, you're good to Okay. go. Okay. Okay. Thank you. And second question was, how do I scale up? So what will be the best method to scale up? So currently I am doing with one lot only since November. So Yeah. and my target will be around 30 to 40 lots. So both buy side and sell side. Yeah, so the scale up, if you are starting trading strategy for very short time, the scaling should be gradually. Okay. You start with let's say you said you are starting with a one lot. If you see a profit, little profit, then when once you have a profit, that is the base time you can increase the lot. You know, Mhm. so you don't have much fear to lose on the downside. And Okay. gradually, as and when you build the confidence and your equity curve, you can gradually start increasing your lot size. But do not go in one Yeah, one yeah. shot. I have still not gone beyond one since November.
Yeah, so these things, because I can correlate. When I started in 2009, I was taking risk of only 500 rupees per trade. Now I can comfortably take risk of 50,000 or even 1 lakh per trade. So these things come gradually, and it should come naturally. Do not force yourself to increase the lot size, or you should feel comfortable. You itself will feel that okay, you're comfortable to, because no matter what we or any other trader says, finally it's about your comfort zone, and that comes within. No words will help you here. Okay, thank you. Thank you. San, one question to you. Sure, sir. It तू will be कभी कभार chargeable. तो तू भी तू कभी कभार तो मिलता है स्पेस पे, तो कभी तो हमें भी पूछने का मौका मिलना चाहिए ना. हमें भी Sure, तो but it will एज अ be. स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी तुझे कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो एज अ स्टूडेंट मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी apart from VWAP, apart from moving average? See, in VWAP personally, सान भाई मजल है रे वो आपके. नहीं, मैं I सैन के मजे नहीं ले रहा. मैं सैन को पूछ रहा हूँ, जान करके पूछ रहा हूँ. नहीं देख आशु मुझे उससे सीखना होता है. ये ना फ्री में सिखाएगा मुझे पता है, बट पब्लिक को भी सुन के आना चाहिए कि हम स्पेस में काम की बात भी करते हैं. फिर no, मुझे कुछ that's why. लगेगा, मैं मॉडिफाई कर दूंगा उसको. No, the question will be free of cost, but my answer will be chargeable to you. So, to be honest, sir, कि इंटरडे में जनरली अगर आपने मेरा फेवरेट ही निकाल दिया, वीवैप को निकाल दिया, सो ओके. अगर आपने वीवैप निकाल दिया तो डे हाई एंड डे लो जनरली क्या होता है कि व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग डाउन, देन ट्राई टू look for a reversal candle, 5 minute candle at day high when market is trending down. And the same way, when market is trending up, you can just watch last 4 day data. If market is trending up, then because indices do not move in one direction, they give pullback, and on intraday basis you will get lot of small pullback on smaller time frame. So market is trending up, then try to look for the reversal candle at day low. That will give you very low risk, high probability intraday setup. I personally use VWAP a lot, but आपने उसको भी निकाल दिया है कि VWAP के VWAP और मूवी एवरेज के बिना बात करो. So that is it. If someone is using VWAP, then pullback at the VWAP in the trending market, first pullback in the trending market works like a charm. Any more questions, sir? Sam, I'm driving. I'll just ask you a question in 2 minutes. तू Sure, कभी sure. कभार तो रोज के लिए मिलता है मुझे. आशु, आज ये ज्यादा चलेगा. सैन बैठा जब तक रहेगा ना, ये चलता है. अरे यार और आपका वॉइस पे नहीं आ रहा है. नहीं, ये आयरलैंड जाता है, पार्टी करता है, हॉलैंड जाता है, और हमें कभी है ना अरे दुबई बोलो का यार टिकट मत बेल्जियम बोलता. में है, बेल्जियम में यार बियर ही कोरियर कर दे. या हाँ, अपने या हम That I लोग can do. डुप्लीकेट पी रहे हैं. हाँ, so I would definitely say कि बेल्जियम में सबसे अच्छा मुझे लगा वो है बियर. Yeah. हाँ हम लोग यहाँ पे बेल्जियम के नाम का बियर पी रहे हैं. फर्स्ट कॉपी टाइप्स. Ashu, you can ask other speakers to speak. I'll just be back in 5 minutes. Sure. So we have Deepak here. Deepak, Himanshu, and who invest. You can ask your question. Hello. Yes. Yeah. Am I audible, sir? Yes, you are. Yeah. So first of all, thanks for accepting my request. सर कोइंसिडेंटली सर आप लोग स्ट्रेटेजी पे ही अभी बात कर रहे थे, तो सर मेरे को भी एक यही क्वेश्चन था कि सर ये स्ट्रेटेजीज असली में काम करती है कि नहीं. तो सर ये मूविंग एवरेजेस है, फिर RSI है. We have talked a lot on this. ठीक है, अभी हम लोग पिछले आधे घंटे से यही बात कर रहे हैं. So इस पे अब अगले दिन फिर से टच बैक करेंगे या डेडिकेटेड एक स्पेस रखेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर. ओके सर मेरे को मेरी एक स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी डिस्कस करनी थी. मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपसे 2 मिनट ही लूंगा. फिर सर आप एकदम क्विक में बोल सकते हो तो 1 मिनट के अंदर बोलना.
हाँ तो सर एक्चुअली क्या है कि बैंक मैंने मतलब मेरे को 1.5 साल हो गया है, ज्यादा टाइम में मैं न्यू ही हूँ, पर सर मैंने रोज बैंक निफ्टी को देखा है। सर मैंने एक चीजें नोटिस की है, वो सर फिर मैंने उसको देखा, मैंने उसको टेस्ट किया, मैंने कुछ टाइम फ्रेम डिसाइड किए, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। अब सर ऐसा एक की कंडीशन हो रही थी कि सर एक रेड कैंडल बन रही है, एक ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर से एक रेड कैंडल बन रही है, और मतलब रेड और ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है ना, तो सर मतलब मेरा टारगेट और वो सब मैं मतलब मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, बैक टेस्ट किया उसको, और मैंने बैक टेस्ट किया नवंबर 2020 तक। तो सर काफी अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, बट सर की ट्रेड्स बहुत सारे हो पा रहे सर उसमें, मतलब मेरी ब्रोकरेजेस बहुत ज्यादा हो रही है। तो सर कुछ आप उसमें मतलब मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा अगर आप चाहें तो आप उसको सर आप। भेजना यार, उसके बिना नो कमेंट्स, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा आप करने का क्या कोशिश कर रहे हो। हाँ सर, हाँ वो राइट। मैं आपको समझाऊंगा, पर सर मैं आपको रिजल्ट्स बताऊं तो सर मतलब मेरे मतलब महीने में मतलब ऐसे लॉस डे देखा जाए तो मत मतलब बताओ यार। मुश्किल 1 या 2 दिन होते सर, ऐसा ही था सर। आप सही में सर विश्वास नहीं करोगे, मतलब अभी आपने 2-3 दिन पहले आप भी ना स्पेस में किसी से बात कर रहे थे, तब आपने बोला था कि वो 2 से 5% कमा रहा है मंथली, पर सर आप उस पर भी हंस रहे थे कि यार 2 से 5% कितना ज्यादा है। सर मैं बोलूंगा कि सर मैं 15 to 20% कर रहा हूँ उस स्ट्रेटजी से, तो सर आपको ये रिडिकुलस ही लगेगा, बट सर ये ट्रूथ है, पर सर मेरे को और मॉडिफाई करनी है और मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए थी सर। आप डीएम करो, एक्सेल भेजो, फिर देखते हैं यार। ऐसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर एनीथिंग। मेरे को समझ में नहीं आया आप करने का क्या कोशिश करो। लाइक ट्रेड एक ग्रीन एक रेड क्या बन रहा है, मतलब उसको चार्ट पे देखना पड़ेगा, राइट? सर आप चाहता हो तो सर मैं आपको 1 मिनट दिखा भी सकता हूँ, मतलब आप नहीं अगर नहीं कर, आप मेरे को डीएम करो ना पहले। ऐसे क्या देखेंगे यार। आशु भाई, हाँ हाँ, कैन आई आंसर? यस यस सर, बताइए। सर ये भाई साहब, सॉरी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो भाई साहब का नाम नहीं मालूम, वो बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर रहे थे। सर हाँ ये हाँ, बैंक निफ्टी ये सब बड़े ना सिंथेटिक प्रोडक्ट है। पहले तो वो भाई साहब से एक ही सवाल है कि उनको पैसा कमाना है कि दौलत कमानी है बाजार में। सिंपल। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडल में आप रुपया नहीं कमा पाओगे। The big money will never be made or trading on 5 minute, 10 minute, 15 minute candle. If you are really looking at creating a wealth and creating a fortune in the market, look at the broader markets, understand your system and stop trading in the indices, especially Bank Nifty and Nifty. सर ये बड़े सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, इसमें एक एक्सपायरी में आपको बहुत पैसा मिलेगा, 3 एक्सपायरी में आपका पैसा चला जाएगा। एंड मैं तो बैक टेस्टेड बोल रहा हूँ। आप लोग सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के बैक टेस्टिंग करके देख लो कि कितने लोग ने हर एक्सपायरी में पैसा कमाया है। तो these products are very synthetic products. Focus on making money in the stocks. Focus your strategies. स्टॉक्स के ऊपर सर ध्यान लगाओगे तो आपको पैसा बनेगा, और अच्छा और बड़ा पैसा बनेगा। It is all about how you are gonna make money. That is it, sir. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, बट सर ऐसा है कि अभी मैं न्यू हूँ सर, मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, बट सर मैंने बहुत ही मतलब मेहनत से उसको बैक टेस्ट किया है सर। आप मतलब किया है सर, मैंने अच्छी तरह से बैक टेस्ट। नहीं हम लोग नहीं एक सेकंड, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपने नो डाउट मेहनत किया होगा, और इनिशियली हम लोग सब, मैंने खुद ऐसे बहुत सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट किया, मेरे को पता है आपका एक्साइटमेंट क्या है, एंड यू नो आई कैन जस्ट फील इट कि आपको कितना मतलब भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सो ठीक है, आप एक बार एक्सेल भेजो, या यू नो आप डीएम करो आप क्या देख रहे हो क्या कर रहे हो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली आपको मैसेज करूंगा, ठीक है? आप विशाल भाई को भेजो। सर मैंने आपको सबको डीएम, अगर मैं अमित सर को भी, इफ यू अलाउ मी, मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा। आशु भाई, क्या है? यस यस सर का ये जिन्होंने बैंक निफ्टी का सवाल पूछा, इनका व्हाट्स इज गुड नेम सर? पहला चीज सर माय नेम इज मोहिल अग्रवाल। अग्रवाल जी, सर मेरे को 25 साल हो गए बाजार में। सर 25 साल में मेरे ख्याल में मैंने जिंदगी के अंदर 25 सौदे नहीं किए होंगे बैंक निफ्टी के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सर अगर आप इफ यू आर अ सीरियस प्लेयर और आपको बाजार में लॉन्ग टर्म टिकना है ना, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन खेलना, ये
हीरो करना है, ये सब ये सट्टे के अंदर आप बर्बाद हो जाओगे सर। आप मतलब कोई भी मतलब यू विल नॉट रियलाइज, आप एक एक्सपायरी में पैसा कमाओगे, दूसरे में गवा दोगे, तीसरे में फिर कमाओगे, चौथे में डबल कमाओगे, पांचवे में पूरा साफ कर जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। विशाल भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर यार, यू नो हम लोग इस पे भी फिर एक टॉपिक से स्पेस करते हैं टू जस्ट टॉक अबाउट दिस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, बट है ना राइट नाउ नो लेट्स आशु आशु आई डोंट नो द टॉपिक, यस यस मैं तो आई वाज जस्ट ओके ड्राइविंग डाउन, तो मैंने यार वो स्पेसेस देखा, ओके तो ओके सॉरी अबाउट इफ आई नहीं नहीं नो वरीज नो वरीज यार, और कूल सैन कूल। भाई किधर ब्रसल्स में बैठे हो, कहाँ बैठे हो यार? हेलो आशुतोष। Yes, ma'am. Hello. So we have हाँ yes, ma'am. You can speak. I was waiting for your views here. yeah, I'm just interested to invest query. I just want to know what results he is finding. Yeah. Who invest? Yeah, आप बता सकते हैं like. Yes, ma'am. Can you please repeat the question? Can you tell me what backtest results you are finding? मैम व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोलना चाहते हैं। मतलब रिजल्ट आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है जिसका आपने बैक टेस्ट किया है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग राइट? यस मैम, यस एग्जैक्टली। या तो आपको उसके क्या रिजल्ट मिले? मैम बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बस मैम एक ही क्वेरी थी कि मेरे बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहे थे। एक्चुअली क्या आप सब बहुत मतलब आपको सबको बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस भी है मैम, तो आप मतलब मैं आपको कभी शेयर भी करूँ कि मैम मतलब आप मेरे को आपका सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए था कि आप एक बार मेरी स्ट्रेटेजी देख लें, फिर मैम आपको पता होगा कि हाँ ये चीज एक गलत कर रहे हो, एक चीज सही कर रहे हो, जिससे मैम एक स्ट्रेटेजी आपको भी पता चलेगी और मुझे भी सही हो जाएगा कि हाँ ये एक चीज है। एक्चुअली ट्रेड्स बहुत ज्यादा हो रहे थे उस स्ट्रेटेजी में। बाकी मैम विनिंग रेट बहुत अच्छा है, मतलब मैं आपको मेरी शीट खुली है एक्चुअली, तो रिसेंटली मैंने जो देखा है नवंबर 20 का ही अभी मैंने किया था कुछ दिन पहले, तो मैम नवंबर 2020 में मैंने 7,230 पॉइंट स्पॉट चार्ट में बैंक निफ्टी के कैप्चर किए हैं सर। ओके आई गॉट हिज प्रॉब्लम यार, आपका स्ट्रैटेजी में स्लिपेज आएगा, आशु आप स्लिपेज में फंसोगे। So the point I wanted to make is you try to take all the signals and try to follow it. But yeah, like Ashu said, drawdown will be there, slippages will be there. So then you can try those things in real time on paper, or you can try those things or with little position on real. So that you have to find out the way. Because you have a strategy which is a good meaning. Ma'am, can I add something to your point, if you allow me to? Yeah, sure. To Agarwal ji, I'll just ask a question. He is talking about back testing. He has made 11,000 points. Sir, can I? No, 11,000 नहीं सर, 7,230। हाँ जी सर। नहीं सर 11,000 नहीं था सर, एक्चुअली वो तो बहुत ही ज्यादा है सर, 7,200। Whatever, XYZ 7,000। सर मेरा आपसे सिंपल एक सवाल है कि what is the percentage of winning trades versus what is the percentage of losing trades? Number one. But number two, what is the percentage? What is the number of points you are making on the winning trades, and what is the percentage of points you are making losing on the losing trades? So this will give you the right picture. Don't look at it. Don't look at it कि हमने 7,000 पॉइंट या 11,000 पॉइंट कमाए हैं. What matters is a very simple thing: how big you are making when you are winning, and how less you are losing when you are losing. Suppose you do 10 trades. Out of those 10 trades, your 7 trades are losing trades, and you are losing 5 points on every losing trade. You are losing 35 points, and on the 3 trades also you are only making 5 points. Then you are a loser of 20 points. But if you are winning 15 points on those 3 positive trades, you are still net 10 rupees into 10 points into the money. So what matters? Perfect. So what matters is how big you are winning, making when you are winning a trade,
and how less you are losing when you are in a losing trade. we call that as win loss ratio कि भैया आपका विन लॉस रेशियो कितना है, 1 के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है. अगर आपका विन लॉस रेशियो 1 के ऊपर है तो आपका सिस्टम प्रॉपर है. 1 के ऊपर कोई भी सिस्टम रहेगा विन लॉस रेशियो प्रॉपर है आपका. अगर विन लॉस रेशियो भी 1 से कम है तो आपका सिस्टम ही नहीं है. अरे पण अमित भाई तुम हो किधर, जोधपुर में हो जयपुर में हो? तुम यार हफ्ते भर से मुलाकात ही नहीं हुई, आपसे बातचीत नहीं हो पाई है. मैं हूँ मेरे गांव में. अच्छा जोधपुर में है क्या? ठीक है. कमिंग बैक टू द मार्केट, नो पर्सनल टॉक्स. Okay, yeah. So Stan bhai, you are raising your hands. You can go ahead. Yeah, guys, I just want to put critical point here. Whenever you are backtesting any strategy, there are two parameters: winning trades and the risk reward. People says most people believe that your winning size should be higher than your losing size. That's not always true. There are strategies where your risk reward is 1:1, but the strike rate of the strategy is around 65-70%. Those strategies can make you really good money, though your risk and reward is 1:1 only. And on other side, a trend following strategy, mostly trend following strategy has a low strike rate, means accuracy would be around 35-40%, but there your winning your reward will be much higher than your risk. So there is a trade off. So you should not look only a risk reward, but you need to see in combination with the strike and risk reward. Like many day trading strategy, if you're doing day trading strategy, in day trading strategy getting very high reward versus risk is quite difficult. So what day traders do, they rely on the accuracy. If you have an accuracy of 65% and let's say your risk reward is 1:1, still you can make decent money. And there are swing trader or positional trader who follow the trend following. They make real good money with even 35% accuracy, because their reward is 3 times their to their risk. So it's never one way. So whenever you backtest your strategy, look both the parameter in line with one is accuracy and one is the risk reward. That is what I just want to add. San, if I can add to your point, at Sikota, the world's best trader, the world's best trader that we have known, have a win ratio of 27% only. Win ratio of 27% only. But that person is considered to be one of the best traders. तो आप जो बैक टेस्ट कर रहे हो ना, उसको जब एक्चुअल में ट्रेड करने जाओगे ना, तो उसमें जो आपका जो भी, मुझे नहीं पता आपकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया वापस, तो उसमें आपका जो विन रेट रेशियो निकाल रहे हो ना, उसको थोड़ा डिस्काउंट कर लेना कि भैया एक्चुअल जब ट्रेड करने जाएंगे ना, तो एक्चुअल पिन पॉइंट पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे अनलेस यू आर यूजिंग एल्गोस. अमित भाई मैं बताता हूँ उनका प्रॉब्लम क्या है. वो स्पॉट पे बैक टेस्ट किया है एंड ही इज थिंकिंग दैट ही विल रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, बट वो होने वाला नहीं है. ही विल फेस स्लिपेजेस, एक्सिक्यूशन प्रॉब्लम्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड लास्ट में जाके कुछ बचेगा नहीं. पोस्ट ब्रोकरेज, पोस्ट स्लिपेजेस, कुछ नहीं बचेगा उसका. आशु लेट्स बी पॉजिटिव, सब बचेगा. ठीक है, हमने सब पकड़ लिया कि उनका बेस्ट स्ट्रेटेजी है. उनको बोलो इंट्राडे में अगर आप लाइव लगातार मार्केट करोगे तो आप नहीं फंसोगे ही, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं. नहीं है. आशु इसमें एक सिंपल सॉल्यूशन है. आप 5-6 रिलायंस की आपकी स्ट्रेटेजी से रोज ट्रेड कर दो, उसका एल्गो बनवा लो. अगर आपका एल्गो नहीं बनाना आता है, मैं आपको सिंपल कहता हूँ, आप किसी कॉलेज स्टूडेंट को हायर कर लो, गूगल पे डाल दो, आपको मार्केट फोरम्स पे मिल जाएगा, मार्केट फोरम्स पे मिल जाएंगे लोग. Actually, anyways, we have नहीं आशु एक सेकंड. हाँ आशु भाई, only thing is when people do back testing, they fail to consider the transactional and the operational costs. So किसी को अगर 2000 पॉइंट या 7000 पॉइंट या whatever मिलता है, वो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को बैक टेस्टिंग में ऐड नहीं करते हैं. When you add the transactional cost, whether the system is profitable or not, ये लोगों को समझ में नहीं आता है. The moment you add the transactional cost on the higher side, most of the systems get into a failure system. People only look at the absolute and the gross value. Gross value पे I have multiple systems which are positive and profitable on gross value. But the moment you add the transactional cost,
all these systems go for a toss. So people also need to add the transactional cost on the higher side. Not many people do that. तो वो एक बड़ा पॉइंट है जहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं कि यार बैक टेस्टिंग में तो हम पॉजिटिव होते हैं लेकिन पैडीकेयर में जब हम खेलने जाते हैं हम तो नुकसान में होते हैं. That's it. Right, right. So let's move forward now. I have Angel Parikh ma'am here. I have been following her since 5 years now at least. I guess. So Oh, welcome, I ma'am. follow I follow her for almost a decade. मतलब जब तुम में से कोई नहीं था ना, जब ट्विटर बहुत अच्छा था ना, जब ट्विटर हमारा बहुत अच्छा था, जब कोई ट्रॉलिंग वॉलिंग नहीं होता था, हम तब से एक दूसरे को जानते. आई हैव नॉट टॉक टू हर पर्सनली, बट ट्विटर उस टाइम जैसे सैन था, मैं था, ये थी, एपी सर थे और इतने सारे अच्छे ट्रेडर्स थे ना, हम सिर्फ डिस्कस करते थे. हम में से कोई किसी को स्क्रीनशॉट नहीं करता, कुछ नहीं करता था. ये खुद एंजल जानती है. इसका ओरिजिनल नाम क्या मुझे भी नहीं पता. मैंने कभी इसका नंबर ना मांगा ना किसने कभी मेरा नंबर मांगा. बट एक दूसरे के लिए इतना रिस्पेक्ट है ना. वो ट्विटर दुनिया अच्छी थी जब है ना लोग एक दूसरे की टांग नहीं खींचते थे. आज ट्विटर की दुनिया इतनी खराब हो गई ना. भाई तू क्यों ऊपर जा रहा है, तू नीचे आ, मैं तुझसे ऊपर जाऊंगा. एंजल यू विल एक्सेप्ट दैट फैक्ट. क्यों हम इतने साल से एक दूसरे को जानते. ये जानते हैं. अभी डायरेक्ट तो बहुत कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन व्यूज डेफिनेटली वी हैव सीन ऑन ट्विटर. Right now, I just wanted to know what are the views of people over here for market forward from here on. Yes, yes. What's your thoughts on this? See, my view is very simple. My view is simple. If she's asking me, my view is very simple. 16400 breaks out, probably 16700, 16800. This expiry maximum. Because the data is so much driven towards the call side that more calls have been written compared to put side. So now, what will happen on Monday, I don't know. Based on that, and based on my PCR data, okay, this market is bullish. As of now, this market is bullish. What will happen tomorrow? I don't know. I don't have information कि पुतिन साहब न्यूक्लियर छोड़ देंगे या फेड कुछ बोल देगा. Leaving that apart, whatever I am seeing as on today's date, 16800 is what I see max on this expiry. क्योंकि वो स्टैडल भी वो मुझे बता रहा है कि भैया 16800 भी अगर निकल गया तो जो कॉल राइटर्स है ऊपर के वो बहुत बुरी तरह मरेंगे. क्योंकि आज भी अगर आप जाके डेटा चेक करोगे ना तो ओपन इंटरेस्ट जो 16300 के कॉल पे खड़ा है वो बहुत बड़ा खड़ा है. और 16300 का कॉल राइटर मरना शुरू हुआ तो नेक्स्ट आपका डेटा पड़ता है 16500 और 16600 पे. वेयर ऑलमोस्ट 35 lakhs हैव बीन एडेड. कमिंग टू डेटा ऑन वीकली ऑन मंथली पार्ट, मंथली में भी सेम डेटा मुझे दिखा रहा है कि भैया ज्यादा कॉल राइट हुआ है कंपेयर टू पुट राइटिंग. मतलब उन्होंने फ्राइडे कुछ ना कुछ एडजस्ट करके गए बट पोजीशन नहीं काट के गए, वो कॉल राइट करके ही गए. अब कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा बियॉन्ड माई नॉलेज. Okay. Ahmed bhai, ma'am, technical data is indicating, the options data is indicating bullishness in the market. Very simple and very clear. Options data indicates there is a bullishness and markets are poised to move up from here. But the fundamentals and the macros have gone for a toss. So it is a very catch-22 situation. Everyone has to be cautious, be the bulls or be the bears. Everyone has to be cautious because macros have gone for a toss, but technical data is showing very bullishness, enough and more bullishness. तो कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा. बाकी आपने कहे थे ना बाजार भाव भगवान से बाजार में. Vishal, adding to your same point, if VIX is falling from 25 level, if you remember in last space we have discussed that if it crosses 24, it will go to 27. It have reversed from 25 level, it have come to 20. अमित भाई विक्स से क्या लेना देना है यार. विक्स से भैया विक्स इंडिकेटर है, विक्स इंडिकेटर है. सर मैं तो पोजिशनल ट्रेडर हूँ, आपको मालूम है. एक सेकंड. So Stan bhai has something to say. Stan bhai, you go ahead. Yeah, you go ahead. No, Asutosh, it was related to previous question, so you can move ahead. That hand I raised on the previous question. So that question has been answered. यार अभी मॉडरेशन करना पड़ेगा ना, आप उसी पे बोल दो. अच्छा चलो मैं आगे बैंक निफ्टी का भी व्यू बोल देता हूँ.
बैंक निफ्टी का भी सेम व्यू बन रहा है 36,800 to 37,200 max, which I can see in this expiry. If we probably break 35,000, that would be a blunder for the markets. Probably we'll again go and retest 32,000. Probably we'll again go and retest 32,000. Because the data as of now is not showing me bearishness, so I will not comment on that bearishness. Because IVs have started falling down, VIX have started falling down. So for me, this is an opportunity not to go blindly long on calls. क्योंकि अगर आईवी गिरेगा ना और विक्स गिरेगा तो आपको जो प्राइस मिलना चाहिए ना वो थीटा डीके के कारण फर्स्ट थिंग, सेकंड है आपका विक्स गिरेगा तो आपको ऑप्शन में वो प्राइस नहीं मिलेगा. अगर 21 का विक्स फॉर एग्जांपल 22 का विक्स 19 आ गया तो आपका जो वेगा फैक्टर है वो वेगा फैक्टर के कारण मार्केट नीचे आ जाएगा. ठीक है थैंक्स अमित भाई. आबिद भाई आई थिंक अपने को चंदा मामा और ज्ञान मैन को देखना पड़ेगा वो सब के लिए. तो कोई ज्ञान एक्सपर्ट है तो विशाल नो फंड्स अबाउट एनीबडी स्टडी. सबका स्टडी अपना है. हम कभी किसी स्टडी का मजाक नहीं बनाएंगे. मैं किसी का कोई ये हम मजाक नहीं बनाएंगे. मैं बोल रहा हूँ कि कोई ज्ञान एक्सपर्ट है तो वो बता दे कि भाई कहाँ पे ऊपर जाएगा कि कहाँ पे नीचे जाएगा. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So I mean because astrology also matters a lot in the markets. So that is what I'm saying. If there is some expert over here, they can. अगर आयुष है तो आयुष को बुलाओ यार. Angel ma'am saying something. Yeah, I have bearish view. That is why I am just confused. Because I am thinking there is a channel, means we are in a range 15,700 to 16,400. That is the range. If you draw that kind of a flag or channel, one can see that on chart. So I am confused there, and I am looking for one more low. So I am just confused. You have highlighted a very good point here, ma'am. So basically, what you are trying to say is कि ऊपर वाले range से we have moved down to this lower channel. Yes, so that 3 times that happened. Yes, We went to there, we went above, went down, again up, and again we are moving there. Yes. Monday mostly. Yes. So Monday mostly we are good. Right, I see what you are saying. So basically, what you mean is यहाँ पे 16,300 पे है we are right now, and if we move in this channel only, then the next possible targets are 15,700, 800, right? Lower end of this range, right? And if we break above from this range, then we will go back in 17,000 वाले range पे, right? Right. Right. Makes sense. Cool. So yeah, San bhai, Amit So bhai. there is one caution point over here. Just don't go blind bull. Just get a confirmation. Let it stay above 16,400, and then you can go for 17,000. But without that, there is high chances that we may get rejection from 16,400 towards 15,700. Completely makes sense, ma'am. Completely makes sense, and it's you have highlighted a very very good point here. Yeah. And that is why actually Ashutosh, the thing is all indicators are pointing upside. There is nothing which suggests that it will go downside, but this is one concern. Right. Okay, so I'll just post this chart, and so that this can also understand what you are trying to speak. But Angel, one thing is over there. Bank Nifty have given a breakout of this out of this range. It is already outperforming Nifty. It is already started outperforming Nifty. Yes. You check the OI data of this Bank Nifty components. They are already having huge OI additions on long side. Plus short covering is over there, including BOB, Federal Bank, Canara Bank, and one more PSU bank I was talking about to my students. So वो stocks breakout दे रहे, ठीक है? उनका weightage नहीं है, but वो stock outperform कर रहे. Same is with software sector, same is with the auto sector, same is with financial service sector. So वो OI जो बढ़ रहा है ना, तो उस OI की डेटा के पीछे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आता है कि ये अगर परफॉर्म किया, cause I don't track Dow Jones, मुझे Dow से कोई मतलब नहीं है. और जो आपने बोला ना कि 16,400 का 16,400 का जो लेवल है, even I respect that factor, plus minus 50 points. Let's take 16,500 as a round figure.
Right. Unless it crosses 16,500, the gap zone will not get filled. If market goes in that gap zone, so chances Right. are very high. Chances are very high that market will try to fill that gap. Since Bank Nifty have already outperforming Nifty, so chances are high that if market wants to move up, only Bank Nifty will help it out. Plus any other stock that may join the party Uh, on the upside. Actually, my view is not just for just this week. It is of 10 days almost. So yeah, we may move further up from here, and then we may fall. That is quite possible. So OI may indicate near term idea. I think One so. or 2 days, 1 or 2 days max. Yeah, Because OI data keeps on changing every day. So we yeah, need that to is track one. OI data every day. We need to track OI every day. Because Yeah, and I mentioned, I go by charts only, and that is why I am still reluctant. But Yeah, I've yeah, posted the chart. If you can see it, I've pinned that tweet, and maybe that helps. You know. but that Angel, OI data. नहीं नहीं nah, अपना निफ्टी का निफ्टी चार्ट दैट both the ranges that we are looking at. Hmm. Okay, I am not able to see. But anyway, hi, yeah, it is there. Yep. But it is not so opening. San is raising his hand. San, Yeah, please. Sun. Yeah, Angel ma'am, I just want to make one point here. Yeah, sure. I have traded all the classical pattern, call it channel, head and shoulder, you name it, advanced pattern, harmonic, illustrate, everything. But to be honest, in the market, the one system that works fine is a horizontal support and resistance, and the swing low, how it approach that zone. If you look at Right. the Nifty, because these patterns, these channels are very subjective. It may be different for me, it may be different for you. uh, Right. it depends from where you draw it. Hmm. But if you look at the Nifty chart, Nifty has faced the resistance as 604 6400 couple of times. Again, Hmm. we are at the same level. But if you look back, this time this level is approached by a higher swing low. That showing is that is indicating the weakness in the market is gradually reduced. Yes, You that know, I agree with, because I told na yeah, there are indicators are pointing that thing, but we have to be careful of that thing because yeah, yeah. resistance is also nearby. Yeah, that I really appreciate that point, because in trading and in life, everything can happen and anything can happen. Yep. So Yeah. no matter how confident you are, Hmm. always need to, because I have There never, is a from last 10 years I have never took single trade without stop loss, no matter how confident you are. Even if you are exactly. confident, if it goes in your favor, putting stop loss is not going to hurt. But not Yeah. putting stop loss will definitely hurt you one day, and that will hurt you badly. And that is advice for all of you, and this is not bookish knowledge, it's I'm sharing from my personal experience. That is true. That is true. Yeah. Angel, So Angel ma'am and so Sandra, only thing we are confident about in markets is making losses. प्रॉफिट तो हो गया लेकिन लॉस तो कॉन्फिडेंस वी आर uh, कॉन्फिडेंट कि लॉस हुआ तो कितना खोलेंगे बस दैट इज इट अगर अपने को ये पता है कि कितना खोल सकते हैं तो बाजार में टिके रहेंगे सिंपल but Vishal bhai, tell me you're not still driving. Asutosh, make sure Vishal bhai नहीं and मैं भाई मैं घर पहुंच गया हूँ यार मैं घर पहुंच okay, make sure Vishal bhai and Amit Amit bhai is bhai, not yes. driving, because driving and talking, because it is more dangerous than trading without stop loss. Absolutely, absolutely No, नहीं I भाई. am driving. सैन मैं ड्राइव ही Yeah. कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बट मैं एकदम प्यार से गाड़ी चला रहा हूँ. रास्ता खाली दिखता है ना तो मैं बात करने आता हूँ, रास्ता दिखता है ट्रैफिक है मैं खुद म्यूट कर देता हूँ, तब मैं जाके Then उससे क्वेश्चन पूछता हूँ. then आशु अमित को लिसनर मोड पे भेज दे मैं तो थोड़ा ब्लूटूथ के ऊपर रहता हूँ तो हमें uh, हमें को नहीं अमित भाई, this Asutosh is bhai, not please, not done. yeah, Asutosh bhai, please take the necessary action at your end. हाँ नहीं, मैं उनको भी स्पीकर पे लिसनर पे डालता हूँ. नहीं Yeah. So सीरियसली so अच्छा so सुन, yeah. So to make yeah, just so to make the life simpler, anyone who is listening to this space, try to focus on horizontal levels, and then look the position of the swing high and low. That will give you much better picture than any
any textbook patterns. There are a lot of fancy patterns, and nowadays on Twitter every day we see new patterns. So don't get into it because I have burned my hands. I'm sharing this experience free of cost. You can thanks me later. So do not go get into it. That's only advice. Yes, Ranvijay bhai. Angel ma'am, what I'll just say is there are two things. Trading and investing. I know you have lots and lots of experience, and you have psychology wise also you are pretty good. See, trading. I am in market since 2015, so you can imagine my experience. I am still newbie. Ma'am, everybody is learning. That's the same thing. For a investor side, two things I'll be looking at in market for a longer or a bullish tone. One is when the results. If you track results, last 2 quarters, good or bad results, company were getting beat. Left, right, center, they were getting beaten in the market. So once we again respond to good results in a good way, that is one thing. Second thing is our monthly close of October was the highest. Last October was the highest, was Right. around 17,670 or something. So that is the level. In terms of trading, 200 points up, down, it can happen. We are saying or you're saying say 16 400 450. Amit sir is saying 16 500. It can go. I can even say 16 600, 16 650. That gap zone, maybe it can go up there, fill it, and then go Feel back it. down. We Yeah, can just quite possible. yeah, only in terms of what we can look is what is on the screen. We have made slightly higher low. We are now looking any trend confirmation overall will be once we make a higher high. Then only we can say that the trend is changing. We are in a channel. The smaller channel is of course 15,700 to say 16,400 or 450. Of course, a bigger channel is from there to say around 400. That's the bigger channel. Right. Yeah, from bottom and there. Those are the swing highs that if you connect. Yeah. So if somebody who's looking for 2 days, he can't probably trade for a thing. I know you probably are a positional trader. Then in that case, 100 200 points will not matter to you. Your SL Right. will be a bit bigger than that. Right. So Yeah, that that is is the main thing. That is the main thing. When you trade, it is very much important that you should know which time frame you are talking about. Like I said, I'm trading for 10, my view is for 10 days. Everyone should have their own opinion, own time frame. Only then it is possible to trade profitably. yes, ma'am, and then especially also the kind of loss based on their SL they might make. That is the only two things we can control right now. Right. Most of the times, your risk management can go for a toss if you are not cautious enough. That is the only thing in this market. Yes, the VIX has gone down in last 2 days. That ways, the last 2 days are been the days when we had a closing on a higher side, very near to the highs of the day. So they are bullish, but the confirmation doesn't come so easily. विशाल भाई आप बोलिए. नहीं, आई एम सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल आशु, some gentleman, Mr. Dipen Patel is wants to speak. If he is sent a speaker request, तो एक बार यार उनको एक्सेप्ट कर लो. विपिन भाई को एक्सेप्ट कर लो स्पीकर के लिए. Yeah. और Asu, you can put me in this. Asu, you can remove me from the speaker and you can add another. No need भाई. भाई No तू need. रुक जा यार, कभी कभी तो आता है यार. अभी तू ब्रशर्स में अभी सैन भाई, मैं एक मजे की बात बताता हूँ. What happened the other day? You messaged me that you are in Belgium, and I read it. You are in Belgaum. तो तेरे से यार प्यार अलग है. तू भाई कभी कभी तो आता है यार. तू स्पीकर Thank you, sir. पे तू कहीं नहीं Thank जा you. रहा है.
तो विपिन को बुलाओ यार, विपिन को बुलाओ, लेट्स हियर विपिन. He has been consistently bullish on the markets. So he is a very aggressive view. He always has a very aggressive view. Baki Ashu bhai, I want to say something. Is that I mean, if someone is looking for a 50, 100, 200 points on Nifty, I think I'm not the right person to talk about it. और अगर कोई पोजिशनल व्यू है, लाइक एंजल मैम का भी पोजिशनल व्यू रहता है, इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम रणविजय. तो यार पोजिशनल व्यू लेके आप बाजार में काम करो, आप क्वांटिटी कम में काम करो इंडेक्स में. You will end up, if you have a positional view, you will end up making, and your view goes right, you will end up making big money. There is no point trading 200, 150 points or indexes. Look at the broader perspective and trade. Have patience in the market. बड़ा पैसा उसमें बनेगा, वो रोज रोज का अंदर बाहर करने में पैसा नहीं बनता है. वो अंदर बाहर करने में सिर्फ योर ब्रोकर विल गेट रिच, यू विल नेवर बी रिच. If you want to make big money, you have to have patience in the market and look at a broader view on the market. That's it, sir. और सर नवीन सर को इन्वॉल्व, नवीन सर आप सुन रहे हो, प्लीज प्लीज सेंड योर स्पीकर इनवाइट सर. विपिन भाई. विशाल सर, विशाल सर, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सबके अपने अपने तरीके. मार्केट में सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोग आते हैं. किसी का कोई भी तरीका हो, वो छोटा खेल रहा है, बड़ा खेल रहा है, अल्टीमेटली अगर उसको उससे सक्सेस मिल रही है, आई वुड से जस्ट कंटिन्यू रादर देन लुकिंग एट एनीबॉडी एल्स कि वो क्या कह रहे हैं. एब्सोल्युटली एग्री. आपको जो चीज में कंफर्ट है, आप जिस चीज में पैसा कमा रहे हो, हम लोग की बात मत सुनो. अगर आप कमा रहे हो तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट. और अगर नहीं कमा रहे हो तो फिर और कंटिन्यूसली नुकसान कर रहे हो, तो हम लोग ने भी बहुत नुकसान किया. हमारी बात सुन लो, शायद हमारी बात सुन के आप नुकसान ज्यादा करने लगोगे, या नुकसान कम करने लगोगे, या पैसा कमाने लगोगे. दैट्स इट. ये यस विशाल भाई, वही मैं कहना चाह रहा हूँ. अगर कोई सक्सेसफुल है या उसका अच्छा चल रहा है, डोंट मतलब किसी का सुनो मत, अपना करते रहो टिल द टाइम यू फील कि कुछ कमी है या कुछ गलत हो रहा है. एंड दैट टू वो ना सब्सटेंशियल टाइम पीरियड. ऐसा नहीं है कि 2 दिन ट्रेड गलत चले गए तो वो रॉन्ग हो गया. अगर आपने बहुत दिनों किसी चीज, कोई एक पर्टिकुलर मेथड से कमाया है, दैट इज गुड इनफ. सबका अपना अपना गेम प्लान होता है, उसको एग्जीक्यूट करो. सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया है. नहीं है तो देन दैट इज द ओनली टाइम पीपल शुड लुक अराउंड एक्चुअली. आशु भाई, रिक्वेस्ट लेनी ले लीजिए. बाकी मैं आपको एक बार कोर्स बनाता हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट गिव मी लाइक अ मिनट और टू. ओके 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 ओके. नवीन सर, आपको रिक्वेस्ट भेजा है. नवीन सर आप आ जाइए. विशाल सर, मेरे को वो विपिन नहीं दिख रहे हैं. आई थिंक विपिन चला गया है. दीपक जी, आपका क्वेश्चन हो गया है क्या? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है. आप पूछ लीजिए. विशाल जी है यहाँ पे, सैन है. हाँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि डे ट्रेडिंग में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता और मैं कर भी नहीं पाता, इंट्राडे नहीं कर पाता, पोजीशन नहीं कर पाता. आप लोग स्पेसिस करते हैं, कई स्पेसिस मैंने सुने हैं. कुछ स्पेसिस में आप लॉन्ग टर्म शेयर्स के लिए भी एडवाइस करा करिए, कुछ सेक्टर्स के लिए एडवाइस करा करिए. और जो मेन इन्वेस्टर्स के लिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, हम किसी शेयर को खरीदते हैं, स्टडी करके लेते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. जैसे अभी काफ़ी शेयर्स हमने 2 साल से पहले लिए हुए थे, प्राइसेस बढ़ गए थे. मार्केट जब नीचे आने लगती है, हम लोग डर जाते हैं. हम पता भी नहीं होता, कुछ फंडामेंटल्स ख़राब हो गए हैं या कुछ वो सेक्टर अफेक्ट हो गया है, तो हम उन शेयर्स को डर के बेच देते हैं. फिर देखते हैं कि वो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं. तो आप लोग स्पेसिस में कुछ ऐसा भी कवर करें विच विल बी बेनिफिशियल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. तो वो शेयर कब गिर गए हैं तो आप लोग वो एडवाइस करें
दीपक जी आपकी एडवाइस वेरी वेल टेकन, बट सर सवाल ये है, अब लॉन्ग टर्म के लिए सर हम तो 5 साल का आपको पर्सपेक्टिव दे देंगे कोई स्टॉक का, क्या क्या आपके अंदर उतनी पेशेंस है कि आप 5 साल वो स्टॉक को होल्ड कर सकें? सर देर आर इनफ एंड मोर गुड कंपनी जहाँ पे अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे. नवीन जी ओवर एयर इज अ स्पीकर. Naveen ji is one of the most best value investor I have seen in my entire life in India. नवीन सर से, नवीन सर ओवर टू यू सर. सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप बताइए सर. सर हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो आपके बच्चे ऐसे ही हैं आपके. नवीन जी. अरे नहीं यार, अरे ऐसा ऐसा नहीं है विशाल भाई. एनीवेज थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. बट यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यार, जो जो अभी ये दीपक जी जो भी, आई डोंट नो, इट वाज, आई वाज राइट, इट वाज दीपक जी. But for people like Deepak ji, you cannot see long-term investments. Also, you need to keep tracking them. If you are unable to track them, then doing SIP in mutual funds is best. कोई PMS या कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाइए and you run the, because if you are investing on your own, then you need to track them. यार, it's long-term investing is like gardening. उसको हर वक्त देखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, बीज देखने ऐसे, then it grows and it gives fruits. So if you don't have time to do all those things, then don't bother with doing it yourself. Hand over to some professional investors or जो भी PMS है या mutual funds है, and allow them to do their job. So नहीं, that would be the best thing for. आप ठीक कह रहे हैं नवीन. No, no, Naveen. Yeah, Deepak ji, please go ahead. Please go ahead. Can I say something, sir? Yeah, please, Deepak ji, over to प्लीज you. दीपक जी All आप बोलिए. विशाल सर एक मिनट म्यूट रखिएगा. फिर सैन आपको कुछ बोलना था, आप बोलिएगा इनके उस पे भी. बिल्कुल. या दीपक जी, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में पूछा था. तो देयर इज वन सेक्टर which is not seen by anyone, and that is a manufacturing. Manufacturing is doing really great in India. I belong to business family, and most of my family is into manufacturing, and that is really, really doing well. The factor may be many things, like people moving from China to India and many more. But if you see the stocks also, those there are few stocks I can name you. You can just pull out the chart, and when you are talking about the investing, you should pay attention to the weekly chart. The one stocks there are, I will suggest you three stocks. One is the AIA Engineering. Okay. They are a world leader in a casting, a specialized casting, alloy casting. So you just pull out the chart of AI engineering. They are doing pretty well. Second is the fag bearing and Timken. Because this manufacturing sector is not a popular sector, so लोग उसको ignore कर देते हैं. But if you pull out the chart, those stocks and those stocks from the manufacturing sector are doing pretty well. ये fall में भी वो काफी withstand कर रहे हैं. So one is the AI engineering. You can pull out the chart and do diligence at your end. Second, I say Timken, fag bearing, and in the beginning of the space also I talked about the Ratnamani metal. Right, And right. one more hidden sector is the related to water and water treatment. And in that sector, I like ion exchange, Iron because exchange. somehow I am related to that sector also. I have worked with them. Just look at these four stocks. Do your because I'm big zero in fundamental, but from chart perspective, I can say they are pretty much well set for the good run in coming years. So just that's an input from my side on investing. Right, sir. So, Thank you. Thank you, sir. so I have दीपक a जी. question. Ranvir ji, एक minute. I have a question for Dan Bhai and Naveen Bhai, especially to Naveen Bhai. नवीन भाई, वो 1 का 5 या 1 का 10 कौन सा स्टॉक हो सकता है अभी? अभी 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 सीधी 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 बात, नो बकवास आपसे. आपने मेरे को अपन ने डिस्कस किया था जब केएन एग्री का वो आईपीओ आया था एसईबी में. इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल आईपीओ. So for everyone on the spaces, me and Navin ji discuss a lot on IPO. Before the IPO hits into the market, we discuss a lot about the fundamentals of the company और क्या लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए.
तो ऐसे बहुत सी कंपनीज है जहाँ पे एक का 5, एक का 2, एक का 10 भी होता है, बट यू हैव टू हैव पेशेंस ओवर हियर इन सच काइंड ऑफ मार्केट। तो आई थिंक नवीन जी इज द बेस्ट पर्सन आई नो जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं। तो नवीन जी सर बताइए ना कुछ, आशीर्वाद दीजिए सर थोड़ा, अरे प्रसाद बाबू सर। सर ऐसा नहीं है। आई एम नोबडी। आप ऐसे मतलब इतना आप ये मत करिए, बट ठीक है। गॉड हैज बीन काइंड, मार्केट गॉड्स हैव बीन काइंड। अभी अभी ऐसे देखा जाए तो वी आर इन दिस मिड साइकिल नाउ। तो अभी ना तो मतलब स्टॉक्स हैव बिकम वेरी चीप, नाइदर दे आर ओवर वैल्यू, सो अभी न्यूट्रल टेरिटरी में है। सो लेट अस वेट फॉर सम नवीन जी, मोर लेट मी टाइम। आस्क यू दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। आपके पास क्या है? नहीं अभी देखिए ऐसा, आई डोंट वांट टू टॉक स्टॉक स्पेसिफिक, बट ओके, ओके, आपने आशीष, नो पूछा, अभी प्रॉब्लम। आपने आशीष, आपने ऐसा पूछा कि नवीन मेरे नवीन पास जी के क्या पास, है, तो मैं नवीन आपको जी के पास क्या दो नहीं है? बता देता हूँ। विशाल सर, प्लीज लेट हिम रिप्लाई ना, प्लीज। हाँ, नहीं नवीन जी के पास क्या नहीं है ये पूछे। अब अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, तो आप बेच दो उसको। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट ठीक है। अभी अभी के लिए जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक। दीपक सर ने पूछा कि मेरे पास क्या, तो दिस इज होनली फॉर माई सेल्फ, माई नोट्स, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर ड्यू डिलीजेंस, आई एम नॉट अ एडवाइजर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। बट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास प्रदीप पारादीप फॉस्फेट जो कल लिस्ट हुआ था, हाँ वो हाँ। हमको लगता है कि मीडियम टर्म में मल्टी बैगर की जो ख्वाहिश दीपक सर, विशाल सर ने जताई थी, तो वो हो सकता है। देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी। कंपनी का रिसेंट आईपीओ हुआ था 42 रुपीज में, कल 44, फ्राइडे को कल ही लिस्ट हुआ था, 44 रुपीज कुछ क्लोजिंग है। तो उसको स्टडी करने लायक है वो कंपनी। इट इज जस्ट गवर्नमेंट ने डाइवेस्ट किया उसमें अपना पूरा स्टेक अभी। इट्स क्वाजी एमएनसी कम जुआरी ग्रुप है, और company manufacturing of fertilizer and all, it's a market leader, and it's going to acquire a plant which is going to get operational in coming 2 quarters। उससे कैपेसिटी बढ़ेगी, रिटर्न्स बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, और काफी फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एनी फर्टिलाइजर स्टॉक्स यू गो एंड हैव अ लुक, दे आर ऑल ट्रेडिंग अबव 15 p। दिस स्टॉक इज available post IPO pre numbers, it's at around 5p। तो जब ये एक्सपेंशन वगैरह किकिंग हो जाएगा तो फॉरवर्ड पी इज अराउंड 3। तो दैट्स वन स्टॉक। एंड एक जो रिसेंट आईपीओ हुआ था, जो एवरीबडी नोज इट वेरी वेल अवेयर, विच वी हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम द आईपीओ टाइम, इज रुचि सोया। हमको लगता है कि रुचि सोया कैन बी a very good investment for medium to long term. A lot of things are happening. Lot of, uh, Vishal ji should be tracking Ruchi Soya very well, but he should be having quite a lot of other information also on Ruchi Soya, which may not be that positive. But Sir, every business has cockroaches. I'll सबकी play as कुछ a ना कुछ devil's होती है। advocate. सर आई प्ले एज अ डेविल्स एडवोकेट। सर 35-40 हजार करोड़ की मार्केट कैप पे फॉर मी रुचि सोया इज वेरी कॉस्टली। आई हैव बीन वर्किंग विद रुचि सोया ऑन द सप्लाई साइड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड। आई अंडरस्टैंड, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा करीब से देख लिया है, तो यू विल नॉट लाइक इट। सर 35-40 हजार का मार्केट कैप बहुत महंगा लगता है। आई आई नो। मे गो रॉन्ग, आई मे बी वेरी रॉन्ग ओवर हियर। आप सही हो सकते हैं इस चीज में, बट सर यहाँ पे नहीं, क्या है ना, अभी आपने कुछ चीजें जब बहुत ज्यादा नजदीक से देख ली जाती है ना, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, बट माय व्यू पॉइंट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट ठीक है, नो नो आई योर पॉइंट रिस्पेक्ट इज योर आल्सो व्यू सर। टेकन। सर आई रिस्पेक्ट योर व्यू बट अपार्ट फ्रॉम दिस सर, आपने अभी जो कंपनी का नाम दिया, आशु इफ यू कैन जस्ट ट्वीट दैट कंपनी, दैट वुड बी ग्रेट। और सर यहाँ पे मैं आपसे नवीन जी एक यहाँ पे एक टाइम फ्रेम जानना चाहूंगा वो कंपनी के बारे में कि व्हाट वुड बी दी टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट, जहाँ पे हमको मोटा आगे। मोटा पैसा चाहिए तो 1000 दिन तो रखना चाहिए भाई। देखो, हमारे तो देयर बुजुर्गों इज ने हमको सिखाया था कि कोई भी धंधा करो तो उसको 1000 दिन दो। 1000 दिन, 1000 दिन दो, तो बिल्कुल तो सही बात है। तो एग्जैक्टली द सेम वे, इफ यू वांट टू डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, गिव दैट बिजनेस 1000 days to thrive and give some Sir, decent sir, returns. you have actually given the holy grail for investing.
let me put it this way. सर दो कंपनी के बारे में आपसे व्यू जानना चाहूंगा. एक तो कॉफी डे, given that the madam has turned around the company to a great extent. That is the first company, and second company is Mahindra Life Spaces. सर ये दो कंपनी के ऊपर नवीन जी आपसे खास मैं कर आपका view. ऑनेस्टली कॉफी डे तो जैसे आपने करीबी से देख लिया रुचि सोया को, तो हमने कॉफी डे की हिस्ट्री बहुत करीबी से यहाँ पे बैंगलोर की कंपनी है, तो वी हैव सीन इट एंड विच कल्मिनेटेड इन वेरी बैड डिजास्टर विथ ओनर सुसाइड. सो आई विल गिव इट अ पास. और मैंने इतना ट्रैक भी नहीं किया रिसेंट टाइम्स में. No, no, ऑल sir. आई हैव I will. हर्ड इज मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ मैडम मालविका हेगड़े, जो भी मतलब शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू Sir, turn around I will fortunes. tell you, a couple of things. Like you have a different view on Ruchi, I have a different view on Coffee Day. Given that I had been dealing with Siddharth ji, sadly, काफी टाइम उनके साथ मेरी वन ऑन वन डीलिंग भी की थी हमने. I All know. said and done, all said and done, lot of developments happening on the company. तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा सा देखते उसके हैं. ऊपर Vishal bhai, देखिए. yeah, means after his unfortunate incident, uh, ideally the company should have gone bankrupt, or their stores should have ideally closed and all this stuff, but nothing happened of that sort. आज भी stores चालू है, आज भी business हो रहा है as usual, employees का कोई layoff नहीं है, and like things are सर running smooth. क्या क्या नहीं हो सर, क्या रहा है? वहाँ पे क्या हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ. तो बेसिकली उनके जो स्टोर, जो लॉस मेकिंग स्टोर थे, सारे उन्होंने मैम ने बंद करवा दिए. द प्रॉफिटेबल स्टोर्स के अंदर वैल्यू एडिशन हो रही है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. इफ यू लुक एट द डेट ऑफ द कंपनी, and lot of things that has come down like drastically. So agar for me it is a like Naveen ji said, it is a 1,000 day story on coffee day. So for me it is a 5x from here, from these levels. 40 के विशाल क्वाइट जी, लेवल क्वाइट से. आशु जी लाइकली कुछ क्वाइट ऐड कर लाइकली लूं? हो सकता है विशाल भाई. उनका कॉफी वेंडिंग जो मोर देन दिस कैफेज, उनका जो कॉफी वेंडिंग है, दैट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. एंड आई थिंक आई हैड रेड समवेयर कि जितना मार्केट कैप है अभी, उतना उसका ही वैल्यू है. सर बट ओनली ऑल्सो प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस लेगेसी इशू. Nobody is giving Sir, attention to I it. also wouldn't But touch it it sir, is just one because of the definitely a multi-bagger. legacy issues. Like you just don't know sir, कि अंदर में one क्या है. thing I would like to add on. No. Ranvijay is also asking a question. Before we take Ranvijay's question, uh, so coffee is a complement of pepper. और कॉफी श्रीलंका में बहुत आता है. श्रीलंका इज गॉन फॉर अ टॉस. सो कॉफी एज अ प्लांटेशन की अगर हम बात करें, तो वियतनाम, श्रीलंका, इंडिया और स्पेशली सम पोर्शंस ऑफ अफ्रीका, ये चार पांच रीजन से ही कॉफी आता है. कॉफी इज अरेबिका एंड रोबस्टा कॉफी. तो इनके काफी सारे प्लांटेशंस हैं. तो ऑन अ ग्लोबल सिनेरियो, विद द रॉ मटेरियल कमोडिटी साइकिल ऑन द अपटेक, आई थिंक वहां पे भी इनको कुछ अपटेक मिलेगा. तो बहुत सारी फंडामेंटली बहुत सारी चीजें हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम रिडक्शन ऑन द डेट फीस. So one for me, this is what coffee day is, what Dawat was me at 3 years back at 2022 rupees. For me, I'm super bullish on coffee day at around 40, 42, 45 rupees from a 1,000 day perspective minimum. That's it. Cool यार. Thanks विशाल भाई. विशाल जी, Yes. जो आपने नाम लिए ना कॉफी में, उनसे सबसे बड़ा इनमें है ब्राजील, एंड देन वियतनाम वगैरह जरूर आते हैं, बट ब्राजील लार्जेस्ट है. एंड एक चीज हमको और देखनी पड़ेगी सर, उनको जो हेल्प, लाइक यू सेड, कैफे कॉफी डे गाइस हैव ह्यूज प्लांटेशंस इन इंडिया, so that itself is a big backing for them, because coffee prices, that's a, if that unfortunate thing hasn't had happened probably for 6 to 8 months, uh, their scenario would have easily changed, because the coffee prices worldwide has supported the coffee companies like anything. So that is one thing.
दुआ सर, जो दीपक जी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आपके, रणवीर जी, I'll add to that point. आप कुछ ना करो, ये सारी चीजें ना फंडामेंटल साइड में रख दो। आप अपने घर के बाजू में जितने सीसीडी शॉप्स है ना, जाके देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। जब ये इशू भी आया था ना, जब वो प्रमोटर ने सुसाइड कर लिया था, मेरे घर के बाजू वाला स्टोर चालू था और उसमें फुल भीड़ जाती थी। मेरे घर में 5 स्टोर आजू बाजू में, मतलब मेरे घर के एरिया में 5-6 स्टोर है। मैं सिंपल देखा था, भैया वो स्टोर चल रहे के बंद हो गए, वो सारे स्टोर चल रहे थे। मैं सीसीडी कभी जाता नहीं, मैं शायद 1 या 2 बार कभी सीसीडी गया। भैया 200 रुपए की कॉफी मैं ना पीता, मैं तो अन्ना की 10 रुपए की कॉफी पी लूंगा। तो पुटिंग थिंग्स इन सिंपल पर्सपेक्टिव, आपको कोई बिजनेस समझना है ना, तो सिंपल खुद जाके देखो, भैया वो बिजनेस कर दिया कि उसने शटर डाउन कर दिया, वो शटर डाउन हुई नहीं उस अमित बिजनेस सर से। एक मिनट, मैं इसीलिए दीपक सर के पास खुद जा रहा था, बिकॉज सर दीपक जी आप अपना क्वेश्चन जो आप एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा। आप खुद फाइनेंस हेड हैं, एक कमोडिटी कंपनी से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टिंग के No, लिए no, हमसे पूछ रहे हैं सर, इन्वेस्टिंग में no, आप no, हमसे कब, Ranvijay ji, I just read Deepak ji's profile and I followed Deepak ji. दीपक जी, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपका कांटेक्ट डिटेल्स मेरे को डीएम करिएगा। सर, आई थिंक यू आर विद अ कमोडिटी बेस्ड कंपनी। विशाल सर मैं इतनी देर से हाथ इसलिए खड़ा कर रहा था कि वो हमसे इन्वेस्टिंग पूछ रहे हैं, जो हाँ, कि खुद मतलब फाइनेंस डायरेक्टर मतलब हेड हैं और इतनी बड़ी हाँ, कंपनी से जुड़े इज हुए इट हैं। सुन इज इट विशाल, कुछ ना कर, विशाल कुछ ना कर, चंदन को मैसेज भेजना, क्योंकि मुझे मैसेज आया था चंदन के थ्रू कि दीपक सर मुझसे बात करना चाहते हैं, शायद मैं बात ना कर पाया। ठीक है, तो वो पर्सनल टॉपिक पे ले जाएंगे, यहाँ पे स्पेस पे डिस्कस नहीं करते। यस यस ठीक यस, आई हैव। दीपक सर, आपका नंबर शेयर कर दीजिए डीएम पे, या मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरा नंबर। लेट्स कनेक्ट ओवर द फोन। So lot of things ओके ओके, on. लेट्स कट डाउन दिस टॉपिक, लेट्स कट डाउन दिस टॉपिक। अगेन कमिंग बैक टू सीसीडी, या कोई भी आप चीज देखो ना, आप सामने जाके देखो, भैया फंडामेंटल कब खराब होता है, जब कंपनी का बिजनेस बंद हो जाए। आज अगर आप पिज्जा की बात करते हैं, चलो ठीक है, डोमिनोज कुछ इश्यूज रहेंगे। भाई मेरे घर के बाजू में जितने डोमिनोज स्टोर हैं, वो मुझे आधे घंटे के बाद 1 घंटे में डिलीवरी देते हो, बोलते सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब उसके पास डिमांड इतनी है। तो ये बेसिक प्रोडक्ट्स है ना, उसके लिए फंडामेंटल मत देखो। आपके घर के बाजू का स्टोर है, उसके पास आधे घंटे। वॉरेन बफेट साहब का एक बहुत अच्छा स्टोरी है। वॉरेन बफेट साहब ने बोला कि मैं तो वॉलमार्ट के बाहर खड़ा हो गया, 10 स्टोर थे, 10 स्टोर के बाहर खड़ा हो गया, सिंपल पूछा भैया आप क्या खरीद रहे हो, तो उनको लगा रेजर लोग खरीदते हैं, क्योंकि पीपल वांटेड टू बी क्लीन शेव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने बोला भाई जिलेट तो बिके गई, उन्होंने जिलेट में स्टेक ले लिया। और क्या खरीद रहे हो, कोक खरीद रहे, उन्होंने कोक में स्टेक ले लिया। उन्होंने कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने बिजनेस एनालिसिस किया। फंडामेंटल बैलेंस शीट सब लोग पढ़ सकते हैं। आप बिजनेस एनालिसिस करके जाओ कि भैया बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपके बाजू का अगर चाय वाला है, उसकी चाय उतनी ही बिक रही है या ज्यादा बिक रही है, सिंपल उसका बिजनेस पकड़ो, भैया वो पैसा ही कमा रहा है। पहले अगर 500 रुपया कमाता था, 700 रुपया कमा रहा है। ऑन अ लाइटर नोट, आप एक बार क्यूपिड देखो। ओके, बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत बूमिंग अरे है टिंडर, स्टिल। अरे टिंडर, टिंडर, अब but क्यूपिड को I'll खत्म tell हो you, गए। Amit bhai, just to add to your point, not only just go and see the मैंने business, but once you सीरियस, buy those businesses, give them time. The biggest thing is we never give time for that business to give us returns. अपन खरीद तो एक्चुअली लेते हैं, खरीद के अपने नवीन को भाई, नेक्स्ट डे ही यही रिटर्न चाहिए। यही So you यही should बात give है। time to those businesses to give us returns. वो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल स्टडी है। उसमें आप टेक्निकल चार्ट लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे, आज खरीदना कल बेचना है। नहीं, आप मैं जोमेटो, फंडामेंटली बोल रहा हूँ, जो, हाँ फंडामेंटली बोल रहा हूँ कि मैं अपन क्या फंडामेंटली करते बात हैं, कर वो रहा हूँ। फंडामेंटल से खरीद लेते हैं, फिर चार्ट लगा के बेच देते हैं। मैं वो बोल रहा हूँ। तो नवीन भाई उसमें एक चीज है, जैसे हम स्विगी देखते हैं, जोमेटो देखते हैं, क्योंकि जोमेटो लिस्टेड है, स्विगी लिस्टेड नहीं है। फ्लिपकार्ट इतने साल से देख के आएगा, वो लॉस ही करता है। फ्लिपकार्ट लिस्ट भी हो जाएगा ना इंडियन मार्केट में, वो इंडियन मार्केट में लिस्ट नहीं होने आएगा, क्यों? उसको पता है कि भैया एक्चुअल तो मेरा वैल्यू क्या है, तो मैं लॉस ही करता हूँ। इसके लिए इंडियन मार्केट लिस्ट में वो जाके नेस्डैक पे लिस्ट हो जाएगा, क्यों? नेस्डैक में लिस्ट होगा, उसको वैल्यूएशन मिल जाएगा, उसका कार्यक्रम हो गया, उसके इन्वेस्टर को एग्जिट मिल गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, पेटीएम क्या पैसा कमा रहा है? असली लोगों का स्टेटमेंट सुनो कि भैया मैंने तो ऐसा बिजनेस बना लिया। उसका एक सिंपल स्टेटमेंट है, उन सबने ऐप बना दिए, मैंने तो सब ऐप को उनका स्कैन कोड बना के डाल दिया, मैं पैसा कमा रहा हूँ। मेरा पैसा उनसे पैसा कमाना भी नहीं था, मुझे 1% लेना भी नहीं था उनसे।
मेरा तो काम था कि भैया मैं बैंक खरीद लूं, मैं उनको लोन दे दूं, मेरा पैसा एनबीएफसी से आएगा। जिस दिन जोमेटो का एनबीएफसी आ गया, उसने रेस्टोरेंट को पैसा देना शुरू कर दिया, उस दिन जोमेटो का बिजनेस बनना शुरू होगा। आज जोमेटो के पास कोई बिजनेस नहीं है, जोमेटो पैसा लेता है, पैसा बंद कर रहा है। अमित भाई, दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस। वो सूडो तरीके से दे रहे हैं, ये सब धंधा ऑलरेडी कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड फाइनेंस के तरीके से दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। इट इज जस्ट नॉट हाईलाइटिंग इन देयर बैलेंस विशाल, शीट। विशाल, दैट वाज ओनली एन एग्जांपल कि आपको बिजनेस कैसे पकड़ना है। आज हम अडानी की बात करते हैं कि अडानी बैंकरप्ट हो जाएगा। हम इतनी बार स्पेस पे डिस्कस कर चुके हैं। यार अदानी बैंकरप्ट हो जाएगा। अदानी को बैंकरप्ट होना होता तो हो जाता, कब का ही हो जाता। पीपल अरे टॉक नॉनसेंस। इफ अडानी के पास someone, बिजनेस है भाई, अडानी के पास बिजनेस है विशाल। what I'm saying, if someone comes and says कि अदानी bankrupt हो जाएगा, तो then he is living in a food paradise। वो जो भी बोलते हैं, मतलब वो अपने मुंगेरी लाल के असली सपने देख रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अदानी को शॉर्ट करूंगा और 2000 का 200 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Vishal, I'm putting the same point. They, at the end of the day, they have so much stake. They can sell to anybody. They can raise money and repay bank. मुकेश भाई ने क्या किया था? डेप्ट ले लिया। पूरे लॉकडाउन में हम सिर्फ एक ही स्टोरी पढ़ते थे, मुकेश भाई ने आज स्टेक इसको भेज दिया, मुकेश भाई ने आज स्टेक इसको भेज दिया। फेसबुक आ गया, गूगल आ गया, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आई, पूरा पैसा ले लिया सबसे, बैंक का डेप्ट जीरो कर दिया, बैंक का डेप्ट ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। ठीक है, तो हमें बिजनेस जब पकड़ने जाते हैं ना, तो हमें बिजनेस देखना है, वो बैलेंस शीट का साइज नहीं देखना है कि इसके पास 2 लाख करोड़ का डेप्ट है, 5 लाख करोड़ का डेप्ट है। भैया उसके बाद वो पैसा रेज करने की कैपेसिटी है, वो पैसा रेज कर सकता है। यस, अगर पैसा रेज करके रीपे कर सकता है सब कुछ, दैट इज द फैंटास्टिक जॉब। अदरवाइज ये वेंचर कैपिटल का जो बबल चल रहा है ना, वेंचर कैपिटल का बबल है ये वेंचर कैपिटल हजारों कंपनियों में पैसा डालेंगे, उनको भी पता हमें एक ही या 2 कंपनी या 10 कंपनियां, फिनटेक जो कंपनियां रहेगी या एग्रो कंपनी रहेगी या कोई भी कंपनी रहेगा। यहाँ पे एक सिंपल, आपने वेंचर कैपिटल्स की बात की। अच्छा विशाल, विशाल एक काम करते हैं, इस टॉपिक को है ना, विशाल, आप विशाल से कैपिटल का बैलेंस शीट जाके चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा हाउ सिक्योर कैपिटल और एनी वेंचर और ओमनीवोर या ओमनीटोर का जाके विशाल, चेक कर लो। विशाल, 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 एक सेकंड, ये है ना, अपन एक सेपरेट टॉपिक रखेंगे ऑल टुगेदर अबाउट दिस वेंचर कैपिटल, अरे अमित क्योंकि अरे भाई, शान भाई, इसमें आई वांट बहुत टू छोटा हो स्पीक जाएगा। समथिंग। शान अमित भाई, आप अमित बोलो यार। एंड आशु आशु विशाल, वाइंड आशु अप भी विशाल, करना है फिर प्लीज। वी शुड, इवन आई शुड कंक्लूड एंड यू शुड कंक्लूड। मेरा सिंपल व्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए यही है, 16400 ब्रेक्स, probably 16800, 17100 levels with a stop loss below 16100 levels. Bank Nifty same view, anything above 35500, keep a stop below 35000. Go and buy monthly calls, go and buy monthly calls, not weekly calls. सिंपल बोल रहा हूँ, मंथली कॉल्स बोल रहा हूँ, वो 36,000 का या 35,500 का आपको 1000 में मिल जाएगा, क्योंकि सारा डेटा जो मुझे दिखा रहा है, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, डेटा के बेस पे बोल रहा हूँ। हमारा व्यू हो सकता है 5 दिन में प्ले नहीं करे, बट इस महीने में पक्का प्ले आउट कर जाएगा। इसके लिए आप स्टॉप लॉस रखेंगे 35,000 के नीचे का, बैंक निफ्टी के लिए 16,100 के नीचे का स्टॉप लॉस। दैट अरे इज द अमित कंक्लूजन स्टेटमेंट फ्रॉम माय अमित साइड। भाई, एक पर्सनल सवाल आपसे है और बाकी भी सारे स्पीकर से एक पर्सनल सवाल है, नथिंग रिलेटेड टू मार्केट्स बट रिलेटेड टू आईपीएल। सर, वो फाइनल में दाल बाटी जीतेगी कि दाल भात जीतेगा? भैया दोनों टीम अपनी है, अपन अरे बम्बई रहते तो गुजराती भी है और अपन मारवाड़ी भी है, कोई जीते, मैच में मजा आना चाहिए क्या बस। बात। अपन मैच में सट्टा करते नहीं, तो मैच में मजा आना चाहिए, मैच वन साइड नहीं होना चाहिए, बस मैच देख के सबको मजा आना अरे चाहिए। विशाल भाई, आई हैव बाकी ए अपन सट्टा क्वेश्चन। कर सकते। अरे विशाल भाई, आई हैव ए क्वेश्चन। बोलो ना सर। यार 100 टन माल दो ना खपोली सुबह। अरे यार, किस वो चीज का? पर्सन में डिस्कस करना है। डीएम अरे डीएम कर दो। पर्सनल में रिप्लाई नहीं करे तो मैं यहीं आके पूछ सकता हूँ। अरे मुकुल भाई, कल रात को तो आपसे बात हुई यार, क्या मजाक कर रहे नॉट हैं? अलाउड, नॉट अलाउड। दोनों, आशु, आशु दोनों को रिमूव कर देना अभी, ये पर्सनल बात यहाँ करना है, दोनों को रिमूव कर अरे देना, अपना शान भाई को बिजनेस की बात बोलने दो करना। यार। शान भाई आप बताओ।
there was a lot of talk about fundamental. uh, I don't know much about fundamental, but I belongs to business family. तो एक बात बता सकता हूँ. See, in current scenario, interest rate are rising, inflation is on rise. तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी के पास ज्यादा डेट है, दे विल बी अंडर प्रेशर, क्योंकि उनको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट विल राइज. सो अगर आप इन्वेस्टमेंट का देख रहे हो तो ट्राई टू स्टिक टू द कंपनीज वेयर डेट आर zero or negligible. That is why I suggested four stocks जो मैन्युफैक्चरिंग से है, उसमें ऑलमोस्ट नील डेट है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये कंपनी इनफैक्ट अच्छा करती है, बिकॉज वो दे कैन सस्टेन, कोई डेट ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट रेट का प्रेशर ही नहीं है. बाकी जो कंपनी है जिसने काफी डेट लेके रखा है, उनके मार्जिन विल कम अंडर द प्रेशर. सो इन दिस debt free, and this is not a rocket science, it is simple thing. If a person like me can understand कि ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसी कंपनी के साथ रहना है जिसमें डेट कम है. So don't try to be hero and try to invest in the company where company has taken lot of leverages, lot of debt is there in their book. So try to be with the company जहाँ पे डेट कम है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो अच्छा करेंगे. दे विल compete more, like एशियन पेंट है, कि जो भी कंपनी है जहाँ पे डेट काफी कम है. So that's only advice from my side on investing side of it. Though I am not a investor, but ये थोड़ा simple logic मुझे पता चलता है, and I think you guys should pay attention to it. Thank you, Sam. Thank you so much. So hope that's make money. Mukul bhai, would you like to share something on the markets? कमिंग टू डेप्ट पार्ट, जितना कम डेप्ट है या जितना ज्यादा डेप्ट है, उसके सामने उसकी एसेट देखो, उसने क्या क्रिएट करके आ रहा है. एसेट क्या क्रिएट कर रहा है सामने, भैया उसके पास वापस एसेट भी तो है बेचने के लिए. कभी एनसीएलटी में जाएगा. अरे आप आज क्यों कंपनी बिकवा रहे हो सर? अरे मैं तो बात कर रहा हूँ, सुन समझ अच्छे से. आज रुचि सेवा की बात करते हैं. रुचि सेवा में इतना बड़ा बिजनेस आ चुका है, वो अपना फूड का बिजनेस पूरा दे चुका है. भाई तो रुचि सेवा, पतंजलि बोलो अब उसको यार, पतंजलि में उसका नाम रिनीम होने वाला है बहुत अच्छा जल्दी. हाँ पता है मुझे भी. आज रुचि सेवा के नाम से लिस्ट है तो रुचि सेवा की बात करेंगे ना. जिस दिन पतंजलि नाम आ जाएगा पतंजलि की बात करेंगे. तो वो बाबा जी के दिमाग में पहले से था. भले ही बाबा जी लोन लेके गए, ठीक है, लोग बोलते बाबा जी लोन लेके गए, पर बाबा जी ने लोन रिपे भी तो कर दिया. बाबा जी का इंटेंशन था कि भैया तुमने लोन दे दिया ना, ब्याज के साथ पैसा लेके जाना. बाबा जी का जितने मैंने सुने ना स्टेटमेंट्स, वो बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है. पहले अपना जो भी बेचा, सी आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ हिम, तो आई मे बी बायस्ड, बट दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. बट वो बंदा सिखा रहा है कि बिजनेस भी कैसे करना है सबको. जैसे मुकेश भाई ने किया. मुकेश भाई ने क्या किया, भैया पैसा पहले ले लिया, सब इन्वेस्टर्स को ले आया. 10-10 बड़ी कंपनियां, जब हम 2020 लॉकडाउन की बात करते थे, 2020 लॉकडाउन में वो हर हफ्ते है ना, हर वीक, आज इसका 2 बिलियन आ गया, आज इसका 3 बिलियन आ गया, ऐसा इसका ये पैसा आ गया, आज इसका वो पैसा आ गया. तो काम ही वही कर रहा था. बाकी हम तो बैठ के घर पे है ना, वो झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे थे. काम तो वही भैया बैठ के एंटीलिया में कर रहे थे, हम तो कुछ ना कर रहे थे. तो आपको ये समझना Sir, पड़ेगा प्रमोटर का इंटेंशन क्या है. प्रमोटर का इंटेंशन sir, क्या है. प्रमोटर का sir, इंटेंशन sir, अगर क्लियर है ना, प्रमोटर का इंटेंशन इतना क्लियर था कि भैया मैं पैसा लेके आऊंगा, लोन रिपे कर दूंगा. मुझे 0%, sir, 2% में लोन मिला है, मैं इक्विटी में डाइल्यूट कर दूंगा, मुझे कोई फर्क ना पड़ता. मैं इक्विटी मैंने इतनी बड़ी Amit sir, बना ली. Amit Yes, sir, Stan bhai. Stan bhai, हाँ. Amit sir, simple question to you. Let's say I have a 5 crore debt on me, and I will ask you money. Will you give it to me? मैं भाई, तुझे मैं 10 करोड़ रुपए दे दूंगा. आई कैन बेट ऑन यू. अरे तो दे तो भाई, सी बैंक सी अकाउंट नंबर नहीं, भेज दे. सी सैम, यू डोंट. एक रेस मूवी देखी रहेगी. रेस मूवी में सैफ अली है ना, एक डायलॉग बोलता है, आई डोंट बेट ऑन हॉर्स, आई बेट ऑन द जॉकी. तो मेरा सिंपल है, मैं तुझ पे पैसा लगा रहा हूँ, तेरे सब बिजनेस अच्छा में सर, पैसा यहाँ नहीं पे लगा आप रहा. पैसा नहीं दे नहीं दो तो. नहीं मैं जॉकी को पैसा लगा रहा हूँ. provided you do not know me. मेरे ऊपर 5 crore का डेट है.
आई एम आस्किंग मनी टू यू, आशुतोष भाई के ऊपर 0% डेट है एंड ही इज आस्किंग मनी फ्रॉम यू, भाई आप किसको पैसा दोगे? कुछ तो मैं बैकग्राउंड भी चेक करूंगा ना, कुछ तो ड्यू डिलिजेंस भी करके आऊंगा ना। मैं दोनों को नहीं जानता। डिलीजेंस करके बताओ किसको दे रहे हो पैसा, हम लोग देख भैया ड्यू डिलिजेंस करके आऊंगा तो पैसा दोनों को दूंगा। सैन को 5 दे दूंगा, तुझे बोलूंगा भैया तेरा बिजनेस मॉडल समझा मुझे। सैन को 5 नहीं 10 दे दूंगा। सैन भाई बिजनेस मॉडल समझ में ना जी। मेरा कमीशन थैंक्स आशुतोष, मेरा हो गया, मेरी लाइफ सेट। अमित भाई डीएम पे अरे हूँ सब, अरे तुझे डीएम करने की जरूरत ही नहीं, तू मेरा सब कुछ तू ले जा, तेरे नाम पे लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखो यार, मरने के बाद क्या करेंगे पैसे का, अभी अभी तो ना। अब अरे तुम दोनों को भी मना है, तुम दोनों को भी मना है। ये वीएन है, वीएन का वीएन भी है, वीएन को भी मना है। अरे भाई सब तुम लोग का ही है, मेरा कुछ ही नहीं है। मेरे बीवी बच्चों के पास बहुत कुछ है। तो हम जब बैट कर रहे हैं ना भैया, हम घोड़े पे बैठ ना कर रहे, हम जॉकी पे बैट कर रहे। जॉकी कौन है मुझे उससे उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी कौन ट्रेडर क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जॉकी कौन है? विशाल जॉकी है, मैं विशाल पे पैसा लगा दूंगा। सैन है, मैं सैन पे लगा दूंगा। तू है, तुझ पे लगा दूंगा। मुझे जॉकी पे पैसा लगाना है, मुझे घोड़े पे पैसा नहीं लगाना है। मुझे तू रिलायंस ट्रेड कर रहा है या रुचि सोया ट्रेड कर रहा है या रिलायंस पावर ट्रेड कर रहा है, मुझे फर्क ना पड़ेगा। लास्ट में रिजल्ट तू मुझे देखिए आना है, मुझे पता है तू अच्छा करके आएगा। तो मुझे इतना दिमाग क्यों लगाना है भाई? 4 वेंचर में से एक जगह पैसा डूबेगा ना, जो वेंचर कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। मुझे तो एक ही वेंचर ऐसा चाहिए ना जो मुझे 10x पैसा देगा। आप बोलो, डू यू एनी रिप्लाई फॉर दैट? आई एम रिजाइनिंग टुमारो। भाई अकाउंट में आने तो पैसा, फिर ही डिजाइन करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे अमित भाई की बातों में। सेम क्वेश्चन अमित भाई, अपना 5 CR कभी क्रेडिट होगा? ओके, सो प्रीति का लास्ट पॉइंट लेते हैं एंड देन जस्ट वाइंड दिस अप नाउ, टाइम भी हो गया है। सेकंड, कौन बोला मैं रिजाइन कर रहा हूँ? सैन बोला रिजाइन कर रहा है। हाँ सैन। मैं सैन को पर्सनल कांटेक्ट करके इसको जितना पोर्टफोलियो चाहिएगा मैं अपने पास से दे दूंगा। थैंक यू नहीं, ये सैन के लिए गारंटी, और किसी के लिए गारंटी दूं ना दूं, सैन के लिए मैं गारंटी दे दूंगा। ये जिस दिन आए मैं पूरा पैसा दे दूंगा इसको, मैं मैनेज ना करने वाला। आरटीजीएस तो मंडे को लगेगा, अभी कल तो संडे है। अरे बैंक खुलवा देंगे, आप बोलो ना खाली कि पैसा देना है, अपने कैश में काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 2 नंबर बंद कर दिया भाई अभी। 2 नंबर का ये बंद होता है? आस्क विशाल भाई। चलो टॉपिक पे आते हैं। आई गेस क्या प्रीति, यू कैन गो अहेड। Hi Ashu, कैसे हो आप? It's been long time. I haven't seen you so active like on spaces and stuff. So a big hi to you and a big hi to San as well. So one thing I like to add here is since we are talking about markets view forward, कुछ forward कुछ backward नहीं लग रहा है. The way the markets are opening, gap down and gap up is something that we all are predicting sort of. But then again, looking forward is simple rule है. 15,800 के नीचे bearish, 15,400 के ऊपर super bullish. And then again, when we are talking about व्यू फॉरवर्ड, आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन में लोगों को समझना चाहिए दैट देयर कैन बी कंसोलिडेशन अहेड बिटवीन द एटीआर has been big here from a big range from 15,800 to 16,400, so range थोड़ा बड़ा हो गया है. And then again, Amit bhaiya, sorry, to bring in this in between that in jockey. So I think jockey is Page Industries. So Page Industries is a good bet. So probably you can bet in there. So
one thing peculiar, I think 6% का move already last Friday को दिखा है, तो Friday को देखते हैं कैसा move मिलता है. So I think Page Industries is bullish as of now. So उस पे कुछ अच्छा ठीक ठाक बेट मिल सकता है. But then again, markets view forward is 15,400 के ऊपर भैया वीकली क्लोजिंग मिलता है तो आराम से बुलिश हो जाओ, और 15,800 के नीचे वीकली क्लोजिंग मिलता है तो आराम से बेरिश हो जाओ. So simple, fundamental and simple move ahead that you can see into. कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. सो पीपल हु आर finding some divulgation ahead, they will be in complications and the complexities of the market. But then again, people who are very sorted and into the place with respect to market, with respect to the levels, I think should respect what market is getting in. I'm not talking about bank nifty here because the kind of volatile movements it is giving, I think we need to really sort on those movements. But when you are talking about Nifty, I think 15,800 से 16,400 का एक अच्छा रेंज है जहाँ पे आपको एक अच्छा प्ले मिल सकता है. So if you are a positional trader, these are the ranges wherein you can position yourself with a proper hedge if you want. And if you're a naked buyer, I think um, if you have that courage and you have that heavy heart, then probably you can go ahead, and that's how you can game over. But then again, I would again suggest people, if they have that sort of leverage, and they have that sort of complexity to deal in, they can definitely go ahead and have a look forward to. But then these are the important levels with respect to Nifty. Bank Nifty मैं बहुत interrogative levels दूंगी नहीं और affirmative levels दूंगी नहीं, because the reason is that the kind of volatility we are seeing is very big. मतलब 1100-1200 पॉइंट का मूवमेंट है यार. यहाँ पे अब कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे और कहाँ पे आप अपना टारगेट रखोगे. बट देन अगेन आई थिंक 35,500 एंड 34,500, 1000 पॉइंट का रेंज अगर आपको लगता है, इफ यू कैन keep in between, I think this is an ideal range to keep in. But then again, I would not suggest people to bank on Bank Nifty. Uh, not a suggested move. But then again, Nifty is a decent is into a decent range. Any breakout or any breakdown will give you a decent entry and exit, probably for your trades that you are punching in. So these are levels I think you can find, and um, irrespective of your biasness, if you want to enter, I think a good move that you can catch in. So for me, as of now, I'm bullish. I have never been bearish. For now, 15,800 के नीचे ही I have always said that I'll be bearish. 16,200 के नीचे on a weekly basis, but for weekly basis को बहुत अच्छा हमको मिला नहीं closing. So I have never been bearish at all. I have always posted on my Telegram channel as well that I have always been on a bull market as well. So मेरे लिए कोई bearish market है नहीं. It's a pure bullish market. It's just that what is the sort of tendency that you are into with respect to the horizon that you want to keep in. But for me, it's a pure bullish market. Um, I'll be blunt and naive into this. It's a pure bullish market. But हाँ, short term अगर आपको कुछ करना है तो 15,800 16,400 का लेवल मार्क कर लो अपने चार्ट्स पे and yes that. So that was some very clear views, and मतलब some amazing clarity. Thanks, Ashok, but not as confident and sure as you. But then again, I am very clear on my views, क्योंकि क्या होता है ना, इतना डलीफाई करके कोई मतलब नहीं है भैया. लेवल्स बोल दो. आपको लग रहा है 15,800 के नीचे बेरिश तो बेरिश, 16,400 के ऊपर बुलिश तो बुलिश. That's it, as simple as that. But if you want to just put that jalebi inside people's mind, that you can keep on हर एक घंटे में keeping on that tweet as well. But then I am very strict on my views. 15,800 के नीचे खुल के बेचो, और 16,400 के ऊपर आप खुल के पोजीशन ले लो. But I have no positions. But मेरा एक Marico future है, that's what I've carried. I have no index positions.
That's it. Because कभी मुझे DMs पे आते हैं, मैम आप इतना बोल तो देते हो बट positions क्या लेके गए हो? So I have only Marico futures in my hand. That's it. Nothing else I'm carrying. I am a pure stock and I am a pure stock trader with respect to equity and options or futures. So I don't trade index as well, but I do track them because that's how the holistic views are made, and that's how the entire range of and the breadth of the market is calculated. So that's how it is. That's my view. Right, right. Yeah, makes sense. Makes sense. So, anyone else would like? Uh, Hmm. आएगा उसका सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन So, if somebody is a positional trader, so for me, positional trader is somebody who can hold on to their trades for at least a week of time. मतलब पोजिशनल ट्रेडर ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक दिन में अगर 300 पॉइंट का गैप डाउन हो तो पता पोजिशनल एग्जिट करके भाग जाए. सो आई वांट अ पोजिशनल ट्रेडर हु कैन stick to their views at least for a week of time. So if I want a positional trader to keep their stop loss, that is will be 16050. That's it. एंड बैंक निफ्टी Bank Nifty would be बहुत बहुत बड़ा ATR है अमित भैया. So I think 35,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख लेना ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा बिल्टअप हुआ है नहीं तो फिर उसमें भी नहीं अब कुछ ना बताओ होगा 700 कुछ ना 800 होगा पॉइंट का मूव तो दे देता है बैंक निफ्टी. कुछ ना तो आई होगा थिंक जहाँ खुलेगा ना जहाँ खुलेगा वही का डेटा मैं पढ़ता हूँ मैं पीसीआर का डेटा पढ़ता हूँ पीसीआर का डेटा इज बुलिश निफ्टी बैंक निफ्टी पुट टुगेदर हाँ वीकली इट मंथली बुलिश पुट बट टुगेदर आप एक बात बताओ अमित भैया. इतना बड़ा कभी लेट्स टेक एन ना एग्जांपल कोई आप जियोपॉलिटिकल प्रीति एक न्यूज काम आ कर गया. नहीं प्रीति एक काम करो ना आपको क्यों वीकली ट्रेड करना है मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ क्यों वीकली ट्रेड करना है आपका व्यू है कि 37 जाएगा 38 जाएगा मेरा भी खुद का व्यू Amit, है yeah, let me be very clear. For intraday, I am a 1:1 or 1:2 trader. For a positional move, I am a 1:5 trader or 1:4 trader. So अगर आपको positional में 1:5 का trade नहीं मिलता है, तो I think there is no use getting into that sort of trade. मतलब फिर हाँ तो आप उसको gamble ही उसको कर रहे हो मैनेज ना. नहीं अगर उसको आप मैनेज किया positional जा trade ले सकता रहे है ना हो, ना 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 आपका contract कुछ कुछ सोच के ही बनाया होगा ना लोगों ने. पूरा weekly contract बनाया है. That means it is been mollified and that has been created that way that people are intensed or people are being sorted into that sort of role wherein people can take a weekly or a bi-weekly or a monthly sort of position. So if I'm a trader and I don't have a conviction on my view at least for a month of time, I don't think so that I should trade positional. Then it has to be complete biased intraday trade. No, I'm not talking about intraday trades. मुझे नहीं पता मेरा व्यू इस वीक में आएगा कि अगले वीक में आएगा ठीक है दैट इज माय क्लियर व्यू since I don't have a clear view कि that target will be hit in 3 days or 4 days so I can almost create a calendar spread simple calendar spread I may buy a 36 say for example 37,000 call I of mean, yeah, last sorry to expiry interfere. Sorry to interfere, but if I am a buyer, I don't hedge my positions. I really don't hedge my positions because अगर मुझे ये लग रहा है कि अगर मेरा व्यू मेरे डाउट में है, then I'll hedge my position. और अगर व्यू डाउट में है, तो फिर लेना ही क्यों position? अरे If I बट doubt, नहीं if I नहीं doubt नहीं that नहीं यहाँ नहीं से नहीं नहीं 16,100 से डाउट 15,700 आ सकता है, so I shouldn't get into that position at all. And if I'm getting नहीं into that नहीं position यही and हम I'm लोग hedging मिस्टेक over करते हैं it, हम लोग है ना प्रीति सुनना बेटा हम लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं व्यू प्रॉपर है ठीक है व्यू प्रॉपर चल के आया व्यू प्रॉपर चल के आया फॉर एग्जाम्पल इस एक्सपायरी नहीं आया अगला एक्सपायरी आ गया तब मैंने 3 बार व्यू डाले मैंने इसके बाद व्यू डालना बंद कर दिया क्यों क्योंकि एक दिन पहले वो चीज हो गई एक दिन बाद चीज हो रही है मेरी तो इसके लिए व्यू डालना बंद कर दिया मैं उसको हेज करके आ जाता हूँ मुझे पता है no, जी so कैसे see, Amit bhai, then I think as a trader, I should know my risk first, and second, यस I should know एब्सोल्युटली no, and I should know my calculated risk. Second, and third, I should know that if I am entering into a trade, it should be a trade wherein I will be able to manage my risk. So there are three things: calculated risk,
then I should be able to take that risk. And then third, that will I be able to gulp that risk? Because risk appetite बोलने में बहुत easy लगता है, but when you lose 10,000 and 25,000 bucks in a day, then you start trolling people around, and then you start posting around that iska view देख के ले लिया था, and then view went wrong. But then come on, yeah, this is market. It can open gap down 200 points, it can gap up to 500 points as well. So then if you have that risk of gulping around that sort of points with your view or contra view, then you should enter into a trade. Otherwise you Preeti, should sit into the Preeti, cash. I'll interrupt you. अगर आप ट्रॉलर्स की परेशानी से परेशान हो ना, तो पहले तो ट्रॉलर्स को फॉलो करना बंद कर दो. सैन, मुझे इतने लोग ट्रॉल करते, हम कोई परवाह ना करते जिंदगी में, हम तो उसको नहीं पॉजिटिव नहीं, लेके आपने जाते. बोला ना हेज नहीं करने के लिए, नहीं हेज नहीं करने आपने नहीं, बोला, तो मैंने बोला पहली क्यों हेज करना है, क्यों पहली हेज बात तो करना सुनो है. ना बेटा, Take that. पहली See, बात I'll tell you, Amit bhaiya, sorry to interfere, but I'll tell you one thing. I'm a person who trades OTM a lot. I'm a OTM lover. I'm a OTM lover because I know that OTM में जितना पैसा बनता है ना, maybe delta कम होता है, that's pretty okay. But then the kind of momentum we get into the OTM is perfectly, fine to take that sort of risk, and I owe to that risk because I know that I will be losing less and I'll be gaining a lot. But when then you have that tendency of blaming around people that are yaar mera loss ho gaya, and then fucking then you don't have that gut of taking that sort of risk, then don't enter. Simple as that. That's what my point is. So market views forward, I think, as Ashu has said it very clearly. Ashu, one point I'm making it very clear is market views forward is 15,800 के नीचे बिंदास बेचो. बिंदास मतलब बिंदास, 1000 क्वांटिटी भी बेच दो, एंड 16,400 के ऊपर बिंदास खरीदो. Very simple. People may like it, people may not like it, I don't care, because that's how I'm making my positions. As simple as that. So if people like it and if they're benefited, they'll appreciate it. And if people don't like it, they will go ahead and they'll troll me, and that's pretty okay. But then again, कुछ तो कांस्टेंट व्यू हो. यहाँ पे आते हैं 200 पॉइंट के लिए बोल के जाते हैं, अरे आज 16,100 से 16,200 हो गया, अरे अरे यहाँ पे 300 से 400 गया, खरीद लेना चाहिए. अरे यार, एटलीस्ट commit to your views. That's what is important. Rest everything is okay. People are here to follow you and people are here to listen you. Nobody is following you to nobody is following you blindly. That's what my you know views are. Simple. 15,800 के नीचे बिंदास बेचो, 16,400 के ऊपर बिंदास खरीदो. That's it. Love it or hate it, that's how I am. Ashu, I'm done. You can take somebody else as a speaker. Okay, cool. Thanks. Sad bhai, yeah, you can go ahead. On lighter note, इंडिया में ट्रेडर सोते कि नहीं सोते? And just on lighter note, Sen, weekend चालू है. Okay. Again, on lighter note, traders in India nowadays are very much worried about 2 p.m. sell-off. Technically, sell-off from FIIs. Technically, I am FIIs. So, if anyone, if you guys are curious enough and generous enough to impress me with my bank balance, I can do something on that. That is it. Chalo guys, with this note, let's end this here. 1 बज गया है. It's a good time to end now. Ashu, Have the a last thing I'll put on is, भैया अपना इमोशन को घर पे रख के आना, जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ. अपना इमोशन रखना अपनी फैमिली के लिए पहले, उसके बाद अगर कुछ इमोशन बच जाए
तो अपने फ्रेंड्स के लिए रखना। जैसा मेरा सैन छोटा है, मैं सैन को हमेशा मेरा छोटा ही बोलूंगा, आशु को छोटा ही बोलूंगा। कितने बड़े बन जाएंगे ना जिंदगी में, एक बड़ी कंपनी की सीईओ भी बन गए, मेरे छोटे ही रहेंगे। उसके बाद कुछ बच जाए तो अपना जो करीबी करीबी फ्रेंड है उसके लिए इमोशन रखना। मार्केट में इमोशन मत रखना। मार्केट में आपका एक इमोशन होना चाहिए, भैया मुझे लॉस कितना खाना है। सो विद दिस थिंग आशु के नेम, बट जय हिंद सबके लिए। मैं प्रीति आर्गुमेंट कर लेंगे तो उसका मतलब नहीं कि मैं और प्रीति अगेंस्ट में एक दूसरे के। मैं सैन आर्गुमेंट कर लेंगे, मैं सैन से क्वेश्चन पूछूं, उसका ये मतलब नहीं कि हम अगेंस्ट एक दूसरे के। हम एक दूसरे क्वेश्चन करते हैं कि हम अपना सिस्टम इंप्रूव करके आए। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यहाँ पे इसके लिए हम आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से। हाँ, इसके लिए डिस्कशन हम है एक और दूसरे कुछ नहीं है। डिस्कशन नहीं, आर्ग्यू भी करते हैं कि भैया तेरा चीज तभी निकल के आएगा ना जब हम क्वेश्चन पूछेंगे। सैन को मैं क्यों क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया तू तो बताना नहीं ना, अब तू बता। तब सैन जाके बोलता है, सैन ऐसे थोड़ी बता देगा फ्री में। सैन सब फ्री में ही करता है, मुझे पता है। मैं उसको इतना प्यार करता हूँ ना, तो दैट इज माई लव टुवर्ड्स हिम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लव, ये गलत डालेगा मैं इसको ट्रोल कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो हमारा प्यार हमारी जगह है, हम एक दूसरे को ट्रोल भी करके आएंगे ना, तो हमारा फ्रेंडली ट्रोल होता है, जान करके होता है कि तू अच्छा और बना। क्यों ट्रोल करते एक दूसरे को कि इतना अच्छा बनाओ कि अब मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता कि नहीं, एनीवेज एक दिन बैठते हैं अपने सैन भाई के साथ भी बैठते हैं अपने, मतलब होपफुली जल्दी मौका मिले। अरे सैन को तो मैं दुबई जाके मिल लूंगा, मुझे क्या, ये मुझे आइलैंड बुला लेगा छुट्टी में, मैं इसको अरे मुंबई नहीं बुला बुलाएगा, लूंगा। आप चिंता नहीं करो। अरे हाँ पता है, वो पैसा नहीं खर्च करता। वो मेरी छोटी बहन बोलती है ना हमेशा, ये तो कंजूस नंबर है, एक नंबर का कंजूस है। सैन तेरे लिए बोल रहे, हाँ तो तू बुरा माने अच्छा माने कोई फर्क ना पड़ता हमें, तू हंसना, कल तो मैं तुझे ट्रॉल करके जाऊंगा। तो हमारा फ्रेंडली ट्रॉल्स होता है, हम एक दूसरे से इतने साल से जुड़े हुए ना, इतना प्यार करते एक दूसरे को। प्यार क्यों करते हैं? हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं व्यूज के लिए। हम आपस में झगड़ा करते हैं ना, क्यों करते हैं? कारण एक ही होता है, भैया तेरा ये व्यू तो क्यों है, तू लॉजिक बता, मैं लॉजिक बताता हूँ, उसमें हम बहस करते हैं। उसका कुछ व्यू रहेगा, मेरा कुछ व्यू रहेगा, हाँ वो अपना तरीका का ट्रीट करेगा, सैन अपना ट्रीट करेगा, मैं अपना ट्रीट करूंगा। राइट। चलो अमित भाई, नाउ लेट्स एंड चलो दिस। नाउ लेट्स एंड हैव अ दिस। गुड नाइट एवरीवन, हैव अ सबको शुभ ग्रेट रात्रि, वीकेंड। जय हिंद, जय हिंद। आशु, यस यस, every एकदम day जय हिंद when सर, you जय start, हिंद। every पूरा day when पूरा you सर, start, जय हिंद एकदम फुल every फुल day एकदम you start, इमोशन के साथ। जय हिंद। देश हाँ सबसे पहले है, उसके बाद परिवार है, परिवार के बाद दोस्त रहेंगे, उसके बाद अगर कुछ इमोशन बच जाए तो मार्केट में यार लेके आना, उसके पहले एकदम अपना कोई एकदम। इमोशन नहीं होना या चाहिए। प्रीति, यस। You are raising your hand, Preeti. Yes. Nee, Ashu, one thing. Do you have any views on Inox Wind and Birlasoft? That's it. Inox Nothing का else. तो मर्जर है ना पीवीआर के साथ में, सो वो लोग साथ में चलेंगे। चेक पीवीआर Nee, टू। Inox Wind, Inox Wind. ओह सॉरी, विंड 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 हाँ, तो चेक नहीं किया मैंने बहुत दिन से, एक सेकंड रुको देख Wind लेता और अगर बीसॉफ्ट का कोई व्यू हो तो प्लीज डू सेंड। That's it, हाँ nothing else. प्रीति, बिरला सॉफ्ट में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। मैं ओपन इंटरेस्ट का चेक चार्ट, ये डेटा देख रहा था, Maybe we मैंने have बहुत buyback offer as well. So I have मुझे huge, नहीं पता, huge, 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 मुझे नहीं huge, पता। huge प्रीति सुन लेना stocks बेटा, there. प्रीति सुन लेना बेटा मेरी बात। Hmm. उसमें बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, वो Hmm. बहुत बुलिश दिख रहा है। मैं बिरला सॉफ्ट को भी टैग भी ना किया, कभी ट्रेड भी नहीं करता, कि मेरा वर्कशॉप चल रहा था तो मैं ऐसे ही आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर सेक्टर सर्च कर रहा था। बिरला Hmm. सॉफ्ट का अगर तू जाके चेक करेगी ना, तो उसमें बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है नहीं, पॉजिटिव साइड 20 में। में 500 का बायबैक है, तो शैल आई अप्लाई फॉर बायबैक बिकॉज आई हैव अ ह्यूज क्वांटिटीज देयर, सो बायबैक अप्लाई कर तो दूं या शुड आई वेट? I do not know about the buyback. I do not know about the price itself. चार्ट्स दोनों का बेरिश है। ओके, आई मे बी चेक टुमारो एंड रिवर्ट बैक टू यू। तो हाँ, तो एनीथिंग आशु, इफ यू कैन हेल्प, एंड सैन एंड अमित भैया, if you can help, and Vishal, you there, if you can help as well. So anything on Birla Soft would be a प्रीति, great help. मैं तुझे ओए का डेटा भेज दूंगा उसका, ठीक है? हाँ. हम्म. ओए के डेटा के बेसिस पे बुलिश है, बाकी कहाँ जाता है मुझे उसका प्राइस भी नहीं पता। वो 400 चलता है, 500 चलता है कि 300 चलता है कि 600 चलता है, मुझे नहीं पता। तो अमित भैया 500 पे बायबैक ले लूं ना इससे अच्छा? अरे I have मुझे huge प्राइस ही नहीं quantity. पता उसका, मुझे प्राइस ही नहीं पता उसका, तो मैं क्या जवाब दूंगा?
300 कुछ चल रहा है, 398 और 372 समथिंग, बिटवीन 390 370 समथिंग। 20% के ऊपर का बायबैक मिल रहा है तो सब टेंडर कर देना, सिंपल है, सिंपल ठीक है, रणनीति बायबैक है। में भेज देते हैं। बायबैक में दे दो जितना क्वांटिटी आता है, फ्यूचर का क्वांटिटी खड़ा करो कुछ और वही नीचे के 2200 क्वांटिटी के आसपास है। अरे वो जाके उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर ले, उसका कितना टेंडर लेता है ना लेता है, उसके ऊपर के कॉल बेच के बैठ जा, सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज है। अच्छा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं होती। ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच दे, जितना क्वांटिटी खड़ा है, बिकेगा ना बिकेगा, ना बिका तो फ्यूचर अपने पास खड़ा है, फ्यूचर में क्वांटिटी कन्वर्ट कर दे, नहीं, आई ऊपर का हैव कॉल कैश बेच दे। पोजीशंस, कैश पोजीशन तो खाली कर लूं ना, अगर 500 पे कैश बायबैक को मिल रहा है फ्यूचर, तो। भाई सुन मेरी बात, भाई नहीं सॉरी बहन, मैं हमेशा सबको भाई बोलता हूँ तो मेरे मुंह से वही निकलता है। एक सिंपल काम कर, उसको फ्यूचर में कन्वर्ट करके ऊपर में बेच दे, सारा कॉल उसके बेच दे, जो दिखता है ना ऊपर का कॉल, जो 20। ठीक है, वर्क्स वेल, दिस वे आई कैन डू इट। बाकी अपने करते ना, चेक करके रिवर्ट कर दो। ठीक है आशु, डन डन डन, आई विल बी वेटिंग फॉर रिपोर्ट देन। या कूल कूल। चलो या थैंक्स गुड, आशु। गुड नाइट ऑलराइट एवरीवन, हैव देन, अ ग्रेट वीकेंड। या गुड नाइट, बाय या बाय। गुड नाइट, या बाय बाय।